بولے گا نہیں آپ؟ جی کون؟ ہیلو بولیے. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو. ہلو. ہاں ہاں کریے ذرا بات کن سے؟ ان سے جمشید علی قادری صاحب سے. ان کا تو نمبر ہے گا میرے پاس. ہاں تو وہی تو تمہیں حوالہ چاہیے نا ہر چیز کا. تم نے کہا مجھ سے کہ مجھے ہر چیز کا وہ چاہیے, دلیل چاہیے, حوالہ چاہیے. ہاں تو لکھت میں چاہیے نا بھیا, بولنا کہ لکھت تھوڑے میں چلے ملے گا گا, ایسے. بات تو کرو. لکھت میں ہی ملے گا. میں تو اتنا پڑھا لکھا ہونا جو تمہیں لکھت میں دوں. ان کے پاس ہندی میں کچھ بھی نہ لکھت میں بتا دیا, ان سے بات ہو گئی میری ہندی میں؟ ہاں اردو میں بھیج رہے, وہ میرے سمجھ میں آتی نا اردو. اچھا تو اب آپ کے لیے ہندی ہم کہاں سے بنائیں گے؟ جیسے انگریزوں کے لیے انگلش بناتے ہیں ویسے ہی. مطلب جیسے انگریزوں کے لیے انگلش بناتے ہیں ویسے ہی. اچھا ویسے ہندی میں ہم آپ کے لیے کتاب چھپائیں اسپیشل؟ ظاہر سی بات ہے. جناب من, جتنی دیر کتاب چھپنے میں لگے گی نا اتنی دیر تو آپ اردو سیکھ لو گے کہیں جا کر کے مکتب میں. مطلب پوری زندگی کیا جاہل رہنے کا ارادہ ہے, سیکھنے کا ارادہ نہیں ہے؟ عربی اردو یہ تو ہماری ماتر زبان ہے, عربی اردو تو ہمیں سیکھنا چاہیے. تو کیا ہندی سے ہی دین کو سمجھو گے؟ اپنے بچوں کو ہندی سے سمجھاؤ گے؟ ہندی میں ایک آیت کو ذرا پڑھ کے مجھے سنا دینا تو اس کے ماخذ میں کتنی غلطی ہوتی ہے, اور ایک مطلب میں ایک مطلب بدل جائے تو پورا معنی بدل جاتا ہے, قرآن غلط ہو جاتا ہے. اچھا تو پھر جی. اردو میں صحیح فکس بیٹھ جاتی ہے ساری بات. عربی میں عربی میں ہی بیٹھتی ہے نا, کیونکہ نازل تو عربی میں ہوا ہے. اردو میں بھی تو نہیں بیٹھتی نا پوری بس فکس. اردو میں قرآن تھوڑی ہے, ترجمہ ہے. ہاں ترجمہ, وہ تو کہہ رہا ہوں میں بھی, تو ترجمے کی بات کر رہا ہوں میں تو. ہاں تو ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, جو ترجمہ ہے اب بھائی وہ میری بات ہو جائے, اس کو پتا تو چلے گا موٹا موٹا. اب دنیا کسی مدرسے کے اندر اگر کوئی ہندی سکھائی جاتی تو ہندی سیکھ لیتے لوگ. اب دین جیسے انگریز ہے کوئی, اسے عربی نہیں آتی, اردو نہیں آتی, ٹھیک ہے, اس کو اگر دین ہم سکھاتے ہیں تو انگلش میں ہی سکھانا ہوگا نا اسے پہلے. انگلش میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ دیں گے نا. ہاں تو ایسے اسی ہی ہے, تو طریقے میں سے تو قرآن کا ٹرانسلیٹ مانگ رہا ہوں. بھائی تو قرآن ہندی میں تو چھپا ہوا ہے. ہاں وہ تو چھپا ہوا ہے ہاں تو آپ ہی. مارکیٹ سے خریدو, ہم آیت بتائیں گے آپ کو. وہ آیت تو میں نے تمہارے پاس بھیجی تھی, تم کہہ رہے تھے تفصیل بھیجی تھی نا میں نے. ہاں تو تم نے جو آیت مجھے بھیجی تھی میں نے تمہیں کہا اس کی تفسیر بھیجو, کیونکہ قرآن کو تفسیر سے سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ پڑھتا ہے ایسے تو نہیں بنا سمجھ تفسیر پائے کے گا سمجھ نا. ہی نہیں سکتا. قرآن کوئی سمجھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. قرآن کے اندر 3 قسم کی آیت ہیں, ایک آیت محکم, ایک آیت متشابہات, ایک آیت مقطعات. اب تم سے میں پوچھ لوں مقطعات کیا ہے, تم کہو گے مجھے نہیں معلوم. تفسیر کس نے کری ہے؟ تفسیر کری ہے صحابہ نے بھی کی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ابن عباس ہے, اور تفسیر امام علامہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. تفسیر جلالین شریف, تفسیر کیا کہتے ہیں مدارک, اور تفسیر قرطبی. یہ بڑی بڑی جو تفسیریں ہیں نا یہ محدثوں نے کی ہے. صحابہ کے زمانے میں جو تفسیریں ہوئی ہیں وہ کون سی حدیث میں ہیں؟ وہ تو حضور نے خود اپنے چچا حضرت عباس کو نصیحت دی تھی کہ تفسیر کریں. ہاں تفسیر کریں, وہ تو ہے ہی, لیکن کون سی کتاب ہے وہ؟ کون تفسیر ابن عباس؟ کون سی حدیث ہے؟ ارے تفسیر ابن عباس بابا, حدیث کا نام ہے یہ. تفسیر ابن عباس قرآن کی پہلی تفسیر ہے کہ قرآن کب نازل ہوا, کون سی آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی, کون سی آیت کا نزول کیا تھا, نازل ہونے کی مقصد کیا تھا, کس لیے نازل ہوئی, وہ سارا کچھ اس میں بیان ہے. وہ جو کتابیں ہیں, اب جیسے مثال کے طور پہ سنو, جیسے مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی, کیا وجہ تھی, کس لیے نازل ہوئی, اس کا پس منظر کیا تھا, کیا منظر وہاں پہ پیش آیا تھا جو یہ آیت نازل ہوئی, اس کو تفسیر کہتے ہیں. اور تفسیر
इसलिए ये की जाती कामियों ने है, मेरे ख्याल से सवाल जवाब पूछे थे तब नाजिल हुई थी वो शायद आयत। हाँ, तो तफसीर इसलिए की जाती है कि कुरान को, जैसे कुरान कहता है सूरे आले इमरान आयत नंबर 7 में कुरान कहता है कि कुरान में 2 किस्म की आयत है, एक महकम एक मुतशाबिहात। हाँ, जो मिलती जुलती गोल मोल। हाँ सुनो, और अल्लाह कहता है कि कुछ लोग मुतशाबिहात के पीछे गुमराह हो जाते हैं पढ़ के। अब कुछ लोग से मुराद वो हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, और आगे अल्लाह फरमाता है कि अहले इल्म जानते हैं कि मुतशाबी क्या है, महकम क्या है। तो हमें अहले इल्म के पास जाना पड़ेगा महकम आयत और मुतशाबिहात को समझने के लिए। जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पे तू चला जिस पर तेरा इनाम है। तो अल्लाह का हाँ, जिस पे इनाम है उसके रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा, हमें उनकी बात को अमल करना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। जो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बात पे अमल करना होगा। कहाँ इस बात का मतलब ये है कि अमल करना होगा। इस बात का मतलब ये है कि अमल करना होगा। रास्ते पे जैसे वो गए हमें भी उनके पीछे पीछे चलना होगा। अरे जैसे अमल करे उन्होंने वैसे ही हमें भी करने होंगे। अच्छा, जो अमल उन्होंने करे वैसे तुम्हें करने होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन और कर नहीं पाता। जो वो कहेंगे वो नहीं करोगे। जो दीन की बात कहेंगे वो तो करेंगे ही। नहीं तो अभी तो तुमने बोला कि वो जो कहेंगे हम उनकी थोड़ी बात को मानेंगे, हम तो उनके रास्ते पे अपनी चलेंगे। मर्जी से अगर वो कह दें तो वो थोड़ी मानेंगे। तुम्हें कैसे पता लगेगा अपनी मर्जी से कह रहे या नहीं कह रहे। तुम्हें पता करने के लिए तुम्हारा इल्म उनके ऊपर होना चाहिए, और पता करने के लिए उनसे ऊपर इल्म होना चाहिए। और मिसाल नीचे मैं हो आपको तो देता सवाल हूँ, जवाब ही एक ना मिनट करें, है ना। हाँ, मिसाल मैं आपको बताता हूँ। इमाम बुखारी जो थे उनका नाम तो ना कुरान में है ना हदीस में, ना ही हुजूर ने फरमाया कि कोई इमाम बुखारी करके आएंगे। ना। इमाम बुखारी एक वाहिद शख्स थे अकेले जिन्होंने हदीस की तहकीक की, हदीस को इकट्ठा किया। हमें कैसे पता लगा 1,24,000 सहाबा हैं, हमें कैसे पता लगा कि कौन से सहाबी क्या है, कौन से सहाबी क्या है। ये उन्होंने हमें बताया कि भाई ये हदीस फलाना सहाबी से मरवी है और ये हदीस फलाना सहाबी से मरवी है, ये हदीस उन सहाबी से मरवी है। तो हमारे पास उनकी बात पे अमल करने का कोई और रास्ता है दूसरा? ये तो बात सही है। दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमने उनके ऊपर जो एतमाद इसलिए किया क्योंकि वो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे, ठीक है, सच बोलते थे और अल्लाह की राह में हमेशा ताबियों में से थे या ताबीन में से थे? कौन थे वो ताबई थे इमाम बुखारी। अच्छा। और इमाम बुखारी ने तो किसी सहाबा की सोबत भी नहीं पाई, जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तो सहाबा की सोबत पाई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे हम्माद से फरमाते हैं कि बेटा मुझे 5 लाख हदीसें याद है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बहुत बड़े फकीह गुजरे। उन्होंने इतने मसले मसाइल कुरान हदीस से निकाल के हमें दिए कि अगर हम उसको ना पढ़ेंगे, कुरान और हदीस के उस मसले को अगर हम उस किताब को नहीं पढ़ेंगे तो हम कोई मसला हल ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मकतब में इमाम अबू हनीफा की किताबों की जो उनके मसाइल हैं, जैसे दुर्र मुख्तार है, ठीक है, बड़ी बड़ी जो किताबें हैं फिका हनफी की, उसमें जो मसाइल हैं वो मसाइल अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कोई मौलवी नहीं बन सकता आज की तारीख में। अब तुम इमाम के पास जाओगे, इमाम साहब ये मसला बता दो कि निकाह के दौरान ऐसे ऐसे मसला आ गया, तो इमाम साहब अपने पेट से थोड़ी बताते हैं। इमाम साहब तो मुहद्दिस की तहकीक तुम्हें बताते हैं। ये इनका कहना है, इनसे मेरी बहस होती है ना, तो इनका कहना है कि अल्लाह ने नबी इस्लाम को इल्मे गैब जानने की ताकत दे दी थी। वो फिर अल्लाह बताए न बताए उन्हें सब कुछ पता लग जाए भैया। देखो मैं एक चीज तुमको समझाता हूँ, और एक चीज समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? नबी का। और सबसे बड़ा मुकाम नबी इस्लाम का। ये मुकाम सबसे अल्लाह के बाद सबसे बड़ा इल्म किसका है? नबी का ही है। ठीक है, तो अब ये 2 शख्सियत हो गई तुम्हारे सामने, एक अल्लाह और एक उसका रसूल, ठीक है। तो आपका जहन यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म, सबसे ज्यादा हर चीज की जानकारी, हर चीज को देखना, हर चीज के बारे में बोलना, वो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है, अल्लाह ने दिया है।
ठीक है, अल्लाह के बाद है ना, लेकिन अल्लाह ये के एक बाद कंफ्यूज। मैं बता रहा हूँ ना आपको, अल्लाह के बाद अगर किसी का ये अकीदा हो, सुन लो ध्यान से, कि अल्लाह के रसूल खुद से सब कुछ जान लेते हैं, हाँ कि अल्लाह के रसूल का अकीदा ये, अब तुम्हारा अकीदा ये है कि अल्लाह की जरूरत नहीं है, अल्लाह के रसूल खुद से जान लेते हैं, वो काफिर है। हाँ, और यही जिसका तो मेरा अकीदा इनसे ये, झगड़ा था इतने दिनों अब से। सुन तो लो, और जिसका अकीदा ये है कि अल्लाह के रसूल कुछ नहीं जानते, अल्लाह के बताने भी के काफिर बाद है। भी, वो भी काफिर है। अब आई बात क्या आई, वो बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, जैसे आपका भाई है, वो पहली क्लास में एडमिशन उसने लिया, फिर दूसरी में गया। अगर कोई आपके भाई को उस वक्त कहे भाई आपका भाई जाहिल है, आप कहेंगे हाँ भाई ठीक कह रहा है, अभी तो वो पहली क्लास में ही गया है, जाहिल ही है वो, ठीक है, लेकिन आपका भाई इंजीनियर पढ़ ले, इंजीनियर हो जाए, ठीक है ना। अब वही शख्स अगर आपके भाई को कहे भाई तेरा भाई तो जाहिल है, तो आप उसके कान पे खींच के लगाएंगे, बेटा मेरा भाई तो इंजीनियर ही ले, डिग्री देख ले। बात समझ में आ रही है ना? आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बारीक बता रहा हूँ मैं आपको। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि इस कुरान में हर एक चीज का इल्म है, हर एक खुश्क चीज का, हर एक तर्क चीज का। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सारे जहान के कलम, पेड़ को तुम कलम बना लो, और जितने समंदर हैं दुनिया में उतने समंदर और ले लो, उनको सियाही बना लो, और अगर तुम उसको लिखना शुरू करोगे तो कुरान का इल्म कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मेरे पास भेजो। हाँ मैं बताऊंगा आपको कि उसका इल्म तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये आयत पता मैंने कैसे पढ़ी है? अल्लाह का इल्म अगर तुम लिखोगे तो जमीन में जितनी पेड़ हैं उनको कलम बना दें, और समुद्रों को सबको स्याही बना दें, और अल्लाह के इल्म को लिखना शुरू करें तो सारे स्याही खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह का इल्म खत्म नहीं होगा। ये पढ़ा था मैंने। अल्लाह का इल्म लिखा है वहाँ पे? हाँ। अच्छा ये बता, अल्लाह को इल्म सीखने की जरूरत है? सीखने की बात कहाँ आ रही है इसमें? तो? उसका इल्म मतलब है तो लिख नहीं सकते। अरे वो आलिमुल गैब है। ओहो, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं सीखता है। नहीं, वहाँ पे अगर जिसने भी ये ट्रांसलेट किया है ना, हिंदी में पढ़ा तो है मेरे पास अपना ट्रांसलेट भेजो। कौन सी आयत है, कौन सी आयत पढ़ी तुमने, बताओ। वो आयत भूल गया मैं, यही तो चक्कर है, या तो भेज भी देता मैं। चलो ठीक है, जो आपको तो याद होगी ना वही भेजो, है वही सेम। तो चलो भेज दो मेरे पास। चलो ठीक है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कुरान में हर एक चीज का इल्म है, खुश्क से लेके तर्क चीज का। जमीन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इल्म कुरान में नहीं है। हाँ, इसको तो जमीन की मानते तो हो? सारी बातें ही बताई गई हैं, लेकिन और जमीन और आसमान कुल मखलूकात का तो खैर बताया नहीं है। अच्छा, कुल मखलूकात का नहीं है? कहाँ बताया कि जितनी जमीन और आसमान मखलूकात है वो अल्लाह ही जानता है। चलो ठीक। अच्छा ये बताओ, जो आयत मुकत्तयात है उसका तर्जुमा है कुरान में? मुकत्तयात मतलब? अलिफ लाम मीम का तर्जुमा है? अलिफ लाम मीम का तर्जुमा ऐसे तो खैर मुझे पता नहीं, मैं सूरह और आयत बताओ तो मैं पढ़ भी लूंगा। सूरे आयत नहीं, जब आप खोलोगे ना कुरान, पहला ही पारा शुरू होता है, सूरह फातिहा की बात कर रहे हो? सूरह फातिहा के बाद जो अलिफ लाम मीम शुरू होता है ना। अच्छा, सूरह अल बकरा। हाँ, अलिफ लाम मीम का कोई तर्जुमा नहीं कर पाया, ना कोई कर सकता है। ये है आयत मुकत्तयात। यासीन, हा मीम काफ, ये मुकत्तयात है, इसमें इसका तर्जुमा कोई कर ही नहीं सकता, और ना ही अल्लाह ने इतनी किसी दुनिया में किसी को ये सलाहियत दी है कि इसका तर्जुमा कोई कर सके। इसका राज सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को है। हाँ अल्लाह, हाँ ये लिखा हुआ तो होता है मगर उसका मतलब पता नहीं चलता। हाँ आप सुनिए, इस आयत मुकत्तयात में इल्म क्या है नहीं है किसी को नहीं मालूम, तो हम ये नहीं कह सकते कि कुरान में ये इसका इल्म का जिक्र नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। कुरान के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र नहीं है। लेकिन जिसका जिक्र है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। तुम उसकी बात कर रहे हो ना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अहले इल्म की जरूरत पड़ती है कुरान को सीखने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो आयत भेजी थी आपके पास, उसकी बात बाद में करूंगा। पहली बात सुन लो मेरी, कि हम ये नहीं कह सकते कि कुरान में हर एक चीज का इल्म नहीं है। तुम ये भी नहीं कह सकते कि कुरान में इस चीज का इल्म नहीं है। ऐसा बोलने वाला
ऐसे बोलने वाले पे फतवा जारी हो जाएगा। कुल इल्म मतलब अगर कहे कोई आदमी के कुल इल्म नहीं है तो उससे फतवा लग जाएगा। तुम्हारे पास क्या दलीलें नहीं है? नहीं, बहुत से पैगम्बरों का उसमें जिक्र नहीं है, ये भी तो है। अरे तो वो तो कुल इल्म की बात भाई, वो तो इल्म में ही आएगी ना वो सारी बातें, तो वो जानकारी में आती है। इल्म अब और ये जानकारी बताइए, अलग अलग अच्छा होती हैं। अच्छा ये बताइए, नबी अलैहिस्सलाम जानते थे कितने पैगम्बर है? इस बात में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि झूठ बन जाए अगर मैं जानता नहीं जिस बात को, अच्छा, मैं कह दूं। हाँ। कुरान में 25 पैगम्बरों का जिक्र है और 1,24,000 पैगम्बर है गालिबन, हाँ। या 2 लाख। एक रिवायत में 1,24,000 है और एक में 2,24,000 है। तो क्या नबी उन सबको जानते हैं या नहीं? ये मुझे नहीं पता। नहीं पता। चलिए मैं बता देता हूँ। शब मेराज का वाकया मालूम है? हाँ नबी अलैहिस्सलाम ने किसको नमाज पढ़ाई थी? हाँ, जितने मतलब पैगंबर थे सारों को तो मुझे नहीं जितने पता, सारे अंबिया थे थे, या आधे थे। जितने अंबिया थे। गिनती का मुझे गिनती का थोड़ी बताया, उसमें गिनती का बताया हो तो बताओ। मैं बता रहा हूँ ना आपको, इमामुल अंबिया कहते हैं ना हुजूर को। हाँ। जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, 1,24,000 हो या 2,24,000 हो, सबको आपने नमाज पढ़ाई मस्जिदुल अक्सा में। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबको पढ़ाई? सबको पढ़ाई। लेकिन उसमें तो आया था कि बाद आयतें मतलब पैगंबरों के बारे को तुम्हें बताया जाता है, बाद को नहीं बताया जाता। हाँ, बाद पैगंबरों का जिक्र हम तुमसे करते हैं, बाद पैगंबरों का जिक्र हमने तुमसे नहीं किया। हाँ, इसका तो जिक्र करने से मुराद ये नहीं होगा कि हुजूर को पता नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ। पता होगा नहीं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप, मैं और 50 दोस्त बैठे हुए एक जगह, ठीक है, और आपकी मेरी फोन पे बात हो रही है, तो उन 50 में से मैंने 5 का जिक्र आपसे कर दिया और आपसे मैं कह रहा हूँ अरे भाई मैं सिर्फ 5 आदमियों का जिक्र कर रहा हूँ, बाकियों का जिक्र तुझसे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिक्र से ये मुराद नहीं है कि तुम उनको नहीं जानते या तुमने उनसे मुलाकात नहीं की। तो 5 का बता दिया, बाकी का नहीं बताया। बाकी का नहीं बताया तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो इसमें एक हिकमत भी है, क्योंकि कुरान बहुत तवील हो जाता, बड़ा हो जाता अगर सारे अंबिया का जिक्र होता। बड़ा हो जाता। हाँ, तो अल्लाह ताला ने शॉर्टकट में ये बता दिया आपको कि 1,24,000 पैगंबर हैं, उनमें से बात का जिक्र तो नबी से ही है ना। हाँ, कहा था। अब सुनिए मेरी बात, सूरह आले इमरान है, आयत नंबर गालिबन 80 है या 83 है, भेज दूंगा आपको। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अपने नबी से, ऐ नबी तुम याद करो जब आलम अरवाह में, हेलो सुन रहा हूँ, ऐ नबी तुम याद करो जब आलम अरवाह में तमाम अंबिया से हमने अहद लिया, ठीक है। तो याद किसको कराया जाता है? जो वहां मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे, ठीक है, एक सवाल में अब 1 मिनट इसको पूरा करने दो मुझे। हाँ, लेकिन मैंने सुन रखी है बात। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे जैसे आप बता रहे हैं ना कि याद उसको कराया जाता है जो को वहाँ हो, ठीक है। लेकिन एक आयत वो भी तो है, जमीन और आसमान क्या काफिरों ने नहीं देखा क्या जमीन और आसमान हमने कैसे बनाए? तो उसका काफिर वहाँ थे उस टाइम? काफिरों ने नहीं देखा जमीन और आसमान कैसे बनाए? हाँ। अच्छा, अब ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मतलब एक मिनट रुको ना बाबा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी होगी 25-26 करीब होगी। 25-26। आज से आप 10 साल पहले चले जाओ, क्या दुनिया वैसी थी जैसे अभी है? नहीं, बहुत बदलाव हो गया। तो काफिरों ने नहीं देखा इसको? बनाने की बात हो रही है बाबा। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो ये बनाया तो हुआ ना। ये तो दुनिया में जारी असबाब मेहनत करी है इंसानों ने, वो अपने घरों के हिसाब से बदलाव हुआ है, तो ना कि इंसानों ने बनाया, जमीन और अल्लाह ने आसमान। बनाया। जैसे सूरज पहले काम कर रहा था वो तो अब भी काम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, दुनिया जो है जमीन और आसमान, और जैसे आप किताब पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसमें जो काफिरों ने लिखा है कि जमीन और आसमान पहले मिले हुए थे, फिर जोर का धमाका हुआ, दोनों अलग हुए। हाँ, ठीक है। तो क्या ऐसा इल्म रखने वाला पहला नहीं था क्या कोई काफिर? तुमको पता है कि इस्लाम आने से पहले जो इंजील के और जबूर के माहिर थे, जो बड़े बड़े आलिम थे, क्या वो आलिम नहीं थे? ईसा अलैहिस्सलाम थे ना, तो क्या उनको नहीं पता था कि जमीन और आसमान कैसे बने?
लेकिन उसमें ये आयत पाई नहीं जाती मेरे ख्याल से। हाँ, तो आपने वो क्या कहते हैं वो हिस्ट्री नहीं पढ़ी ना पूरी, इस्लाम जब आने से पहले जो जबूर हाँ के पढ़ी, इंजील के लेकिन जो आलिम थे, माहिर थे, हाँ जो उसमें इंजील, तौरात, जबूर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे, ये सारे उन्होंने छोटी छोटी किताबों की एक बाइबल बना रखी है यहूदी और ईसाइयों ने। उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र मिलता नहीं है वैसे, लेकिन उसमें मिलावट हो गई, ये तो है। तो अब जैसे आप ये बाइबल पढ़ेंगे ना आप, हालांकि ओरिजिनल तौरात तो अल्लाह ने उठा ली, चारों किताब, तीनों किताबें उठा ली, लेकिन अब जब वो बाइबल पढ़ेंगे ना, अभी भी उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कुरान से मैच करती है। हाँ बहुत है ना। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो किताब हक होगी, वो उनमें से तौरात की कुछ बातें लोगों ने याद रखी, उसको लिख दी, जबकि वो उठा ली गई उससे पहले, उसको याद कर लिया, लिख दी। अब अल्लाह ने जब इसको फाइनल कर दिया कि ये कुरान जो है पुरानी किताबों की तस्दीक करती है, तो हम पुरानी किताबों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये कहाँ बन रहा है कि जमीन आसमान बनते हुए, तो जमीन और आसमान की बात हो रही है, जमीन के बदलाव की बात थोड़ी हो रही है भाई। जमीन और आसमान की जो बात हो रही है, आप जो आयत पढ़ रहे हो, हाँ या आप उसका तर्जुमा मुझे ठीक से नहीं बता पा रहे हो। वो आयत याद नहीं है तो मैं पढ़ के डायरेक्ट सुना देता हूँ। हाँ, तो फिर ये तो अल्लाह पे तोहमत लगा रहे हो आप। नहीं, क्योंकि याद है, खाली नंबर, आयत नंबर याद नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं। नहीं, ये तो आप अल्लाह पे तोहमत लगा रहे हो कि अगर उसमें ऐसा लिखा है कि क्या काफिरों से अल्लाह कह रहा है कि तुमने ना देखा जमीन और आसमान, तो इसका मतलब अल्लाह ने काफिरों को बिल में दिया था। वो मायने कुछ और हैं इसके। हाँ, इसीलिए मेरा ये तफसीर मानना पढ़ा करो, आयत को तफसीर से पढ़ा करो। मेरा मानना ये है कि क्या काफिरों ने आप अभी तक नहीं जाना कि जमीन और आसमान कैसे बने हैं, ये है मेरे ख्याल से उसका तर्जुमा। हाँ, ये बोलो ना कि क्या लेकिन वो काफिरों ने मकसद अभी कुछ तक और ये लिख नहीं दिया। जाना। लिखने को छोड़ो, इसलिए कहते हैं ना कि हिंदी में और उर्दू में और बहुत फर्क होता है। जैसे एक पंडित जी ने कुरान की तर्जुमा किया, उसने अपने हिसाब से उलट पुलट घुमा फिरा के मेरे पास भेजा था, मैंने उसका मुकम्मल जवाब दिया था उसको। हाँ, क्या कह रहे थे आप, बताइए आपका इश्काल क्या है, वो मुझे बताइए। इसका जो मेन मुद्दा जो है वो ये है मेरा, कि जो आप कहते हैं ना कि मज़ारों से डायरेक्ट दुआ मांग लेनी चाहिए। सुन्नी वाला भी बता दो कि सुन्नी मतलब क्या है। एक मिनट। हाँ, दूसरा ये सबसे ज्यादा खटकता है, क्योंकि अल्लाह ने तो शिरक के बारे में बहुत जगह कहा है, और ये शिरक अगर अल्लाह अगर साबित हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। मतलब क्या, दोबारा समझा नहीं, क्या बोला आपने। जो मज़ारों से डायरेक्ट दुआ मांगने की बात होती है, दुआ ही इबादत होती है वैसे, ठीक है। और अल्लाह ने तो कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी है, और दुआ ही इबादत होती है। तो मैं अगर इनसे दुआएं मांगता हूँ और ये शिरक में लिखी गई अगर अल्लाह के घर, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा ना। अच्छा, पहले शिरक को समझ लो, शिरक की तारीफ क्या मालूम है। आप ये कहना चाहते हो कि शिरक उसको कहते हैं जो अल्लाह के मुकाबले किसी को खड़ा कर दिया जाए या उसके जैसा मान लिया जाए। कुरान में शिरक की पूरी मुकम्मल तारीफ है। शिरक फिल ज़ात पढ़ा आपने। शिरक के बारे में तो बहुत सारी आयतें हैं कि अल्लाह के अलावा जिन जिनको तुम पुकारते, सूरह यूनुस आयत नंबर 10 जो है जिसमें, ठीक है। और एक आयत मैंने वो भी भेजी थी, सूरह मरियम की शायद। अब मैं आपको समझाता हूँ, आपके समझ में आएगी और बात। उसमें पहले लिखा आप हुआ अपना था सारा कुछ बता कि दे ईसा मुझे। इब्न मरियम, बता दे पहले आप मुझे सारा कुछ। ईसा इब्न मरियम ना ही नफे के इख्तियार रखते हैं ना ही फायदे के, ठीक है। जब वो पैगंबर ही नफे और नुक्से का नहीं रखते तो फिर ये कैसे रख लेंगे। ठीक है, ये आयत मैंने आपके पास भेज दी, लेकिन वो आपने ढंग से बताया ही नहीं। वो मैंने उसका मुकम्मल आपको जवाब भेजा था, आपके समझ में नहीं आया। उर्दू भेजी थी मैंने आपको, नहीं मिला था जवाब। तो खुदा मानना तो बात अलग की बात है, नफे और घाटे का वो इख्तियार ही नहीं रखते। अच्छा, अब एक बात बताइए, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है बुखारी में, आप फरमाते हैं कि वो बदतरीन मखलूक है, खारजी लोग हैं। कौन? जो कुरान में काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को मुसलमानों पे चस्पाते हैं। किसने कहा था? अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी की हदीस है, जिल्द 1 में है ये।
मेरे पास रखिए, भेज अच्छा। दूंगा। तो अब मुझे जरा जनाबे मन ये बताइए कि काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतें कुरान में कौन कौन सी है? एक तो वो आयत है सूरह यूनुस वाली जो बताई थी मैंने, ठीक है, सुन लेना क्या? मेरी बात पहले। हम्म, कि यही लोग हमारे अल्लाह के घर सिफारशी होने वाले हैं, ये भी आयत है, सेम 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 लिखी हुई है उसके अंदर। आयत जो मुझे तो बताएंगे ना बुत पूरी क्या पता है, पूरी। सिफारशी होंगे आखिरत में? नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरी आयत बताएं आप, कौन कौन सी आयत है वो? सूरह यूनुस आयत नंबर 10। पढ़े उसको, मैं बता देता हूँ आपको। एक मिनट में आपको निकाल रहा हूँ, मैंने फोटो खींच लिया था। वो आयत आपको नंबर 10 नहीं है, सूरह नंबर 10 है। आपको पूरा समझाना पड़ेगा बैठा के आराम से। हम्म, ये आयत आपको भी पता है, लेकिन फिर भी मुझसे जानबूझ के निकलवा रहे हो। आप हिंदी में पढ़ते हो ना, मैं देखूँ तो सिर्फ तर्जुमा सही किया है या गलत किया है। चलो यार छोड़ो, मैं समझा देता हूँ। मैं आपको एक चीज ये बता दूं, ध्यान से सुन लो मेरी बात, कि जिस आयत में मिन दूनिल्लाह आ जाए, मिन दूनिल्लाह जिस आयत में आ जाए वो बुतों के ताल्लुक से है, काफिरों के ताल्लुक से आयत है। और ये अभी नहीं हो रहा है। ये जैसे अहले हदीस और ये वहाबी जो बुतों के ताल्लुक से आए, जैसे सूरह हज आयत नंबर 73 जो है, एक बंदे ने एक कॉलेज में पढ़ी थी, और जामिया का कॉलेज है वो, उसमें उसने चैलेंज किया था कि ये जो औलिया अंबिया से मांगते हैं, तो इस आयत का जवाब मुझे दे दें तफसीली, और मैं तर्जुमा सिर्फ मानूंगा, तफसीर नहीं मानूंगा, ठीक है? तो वहाँ के एक आलिम है जिनका नाम है रजा, मस्जिद के एक आलिम है, उन्होंने मेरे पास कॉल किया, मुझे वहाँ बुलाया था, मैं गया था। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे जहाँ जिस आयत में मिन दूनिल्लाह आ जाए ना, ये ध्यान रखना, वो आयत काफिरों के ताल्लुक से है। तो आदमी काफिर ही हो जाता है जब अल्लाह के साथ किसी को पुकारता है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है। अब सुनिए मेरी बात, यही चीज समझने में हेरफेर होती है। अच्छा ये बताइए, जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए, यहाँ पे कैद लग गई ना? सब तारीफ अल्लाह के लिए है, सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए, कैद लग गई ना? कह सकते हैं सब। हाँ कैद लग गई। अब अगर मैंने आपकी तारीफ कर दी तो ये शिर्क हो जाएगा? लेकिन तारीफ अगर करोगे तो ये कह के करोगे कि अल्लाह ने तुम्हें कितना अच्छा बनाया। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे। अल्लाह की हो गई। नहीं नहीं, एक मिनट, अगर तुम डायरेक्ट कहो तो फिर लॉक ही लगेगा ना उसमें। नहीं तो शिर्क हो जाएगा। हाँ तो फिर होना ही है अगर मैंने, जैसे आपकी अम्मी ने खाना बनाया, अच्छा अम्मी जान आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, तो ये शिर्क हो जाएगा? नहीं तो इसमें खाने की इसमें वो तारीफ नहीं होती ना जैसे कि हो रही है। बात सुनिए, अब आगे ये भी तो है लिखा हुआ कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अरे रुको ना बाबा, ये भी तो लॉक लग गया। अरे पहले रुको, तो यही तो लाऊंगा मैं आपको। पहले यहाँ तो आगे, तो पहले बाद में जाना, पहले पीछे रहो ना, आगे क्यों बढ़ रहे हो? ये जैसे आपने कहा कि हमने अगर अल्लाह, शिरक नहीं होगा वो, बात सुनो ना बाबा, मान लो उसे ना ना ना, खता भी नहीं होगी। बात सुनो, अगर जैसे आपकी अम्मी ने खाना अच्छा बनाया तो आप बोलेंगे माशाल्लाह आपने खाना बहुत अच्छा बनाया अम्मी जान, तो ये वर्ड आप मुसलमान के लिए यूज कर लेंगे। लेकिन अगर किसी गैर मुस्लिम के पास आप जाएंगे और गैर मुस्लिम की कोई चीज आपको अच्छी लगेगी, भाई ये बहुत अच्छी चीज बनाई है आपने, तो वहां तो उसके साथ अल्लाह का नाम नहीं जोड़ सकते आप। जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत हो रही है उसमें जोड़ने में कि माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया है? माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया है, किसने बनाया है? ऐसा नहीं कह सकते। किसने बनाया है? ना देखा जाए तो इंसान नहीं बनाया है वो। नहीं, गुमराह और काफिर इंसान बात है तो अलग अलग। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से जो मुराद है ना कि अल्लाह हर तरह की तारीफ तेरे लिए, यहाँ से उसकी जात मुराद है, जाती। हाँ ये भी मिसाल के तौर पे उसका अपना, उसकी जाती, अताई नहीं, क्योंकि अल्लाह की जो तारीफ है उसकी खुद की है। तो सब तरह की जाती तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह की है। लेकिन अगर उसने किसी को कुव्वत दी है, किसी को हुनर दिया है, किसी को क्या कहते हैं ऐसा नवाजा है कि दुनिया में उसने बहुत अच्छा काम किया, अगर उसकी हमने तारीफ कर दी तो ये शिरक नहीं होगा। हाँ शिरक नहीं होगा, खैर ये तो वो, और ना ही ये गलत होगा, ना ही ये गलत होगा।
आप दूसरी चीज सुनिए, अब आए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे, है ना? तो यहाँ पे भी वही कैद है जो शुरू में है। अब यहाँ से जो मुराद है ना, इय्याका खास नअबुदु अल्लाह व के इय्याका लिए ही इबादत हाँ है। सुनो सुनो, तेरी इय्याका, हाँ सुन दुआ लो, का जिक्र है ना उसमें। सुन तो लो ना बाबा। अब यहाँ पे जो आपने पढ़ा ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं? नमाज में। ठीक है, नमाज किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। अब ये बताइए कि जब हम नमाज में आखिरी कायदा, आखिरी में जो बैठते हैं, तो हम नमाज जब खत्म करते हैं तो किस पे करते हैं? रब्बना पे। दुरूद शरीफ पे खत्म करते हैं। अगर दुरूद आपने सुनी, शरीफ पे हाँ खत्म करते हैं। हाँ मैं अब बता रहा हूँ, अगर आपने अत्तहियात पढ़ लिया और अत्तहियात पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ लिया, आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अब सुनिए, हुजूर की हदीस है तिरमिजी शरीफ में कि तुम्हारी दुआ जब तक कबूल मकबूल नहीं होती जब तक जमीन और आसमान में टकराती रहती है। तुम्हारी दुआ जमीन और आसमान में टकराती रहेगी जब तक तुम मुझ पे दुरूद ना पढ़ लो। ये तो सही है, इसमें अब कोई मुझे गलत नहीं है। नहीं, अब तो मुझे ये बताओ कि जब तुम दुरूद पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक वसीला लग गया। तर्जुमा तो क्या ये- है? दरूद शरीफ का तर्जुमा क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व तो हम अला आलि उनके लिए मुहम्मद। दुआ कर रहे हैं ना। किसके लिए दुआ कर रहे हो? यहाँ तर्जुमा क्या पढ़ रहे हो दरूद शरीफ का? दुरूद शरीफ को आप पढ़ रहे हो ना कि अल्लाह उनकी आल पे अच्छा, रहमत हाँ नाजिल बोलो करे, बोलो। है ना? आल कौन है हुजूर की? ऐसे ही है ना। हुजूर की आल पर आल कौन है हुजूर की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो आल है। हाँ कौन है? वो कहाँ वो तक क्यों पहुँचती बोलते हो? है? ऐ अल्लाह रहम फरमा, जैसे जो तूने, उनकी आल सुनो ना यार, हिदायत पे सुनो ना है, यार उनके लिए दुआ मांग रहे हैं हम। भाई, सुनो तो सही। ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर। तो हुजूर के खानदान से तो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्हीं की नस्ल से है ना। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल कहाँ तक है? कहाँ तक है? बताओ, क्या गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत में से है या नहीं? हाँ, उनकी आलम से अगर हम कहते हैं तो बात पूरी होने दो मुझे, है या नहीं? हाँ या ना का जवाब दो। हाँ है, कोई दिक्कत ठीक नहीं है है, इसमें। ख्वाजा गरीब नवाज उनकी आल में से है या नहीं? ठीक है, तो ठीक तुम है। रहमत किसके लिए मांग रहे हो? तो उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। अब हम उनसे ही दुआ मांगेंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। अब अरे यार, फिर तुम अपनी राय फिर राय लगा रहे हो। वो कैसे दुआ मांग रहे हो वो मैं आगे बताऊंगा ना, अभी यहाँ पे तो रुको, आगे क्यों भागने लगते हो? जब तुम्हें उनका नाम लिए बिना तुम्हारी दुआ जमीन और आसमान में टकरा रही है, जब तुम्हारे उनके नाम के बिना तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, ठीक है ना? यहाँ दुरूद शरीफ का जिक्र है ना कि उनके बिना उनके बिना तो इसका मतलब ये मायने ले रहे हो तुम इनसे ही मांगोगे तभी तुम्हारी दुआ कबूल होगी, वैसे होगी ये नहीं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो हदीस कह रही है। कहाँ हदीस कह रही है? आप तो चैन मिलाकर तुम वहाँ तक पहुँचा रहे हो। तो चैन तो अल्लाह के रसूल ने मिलाई ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व तो अला ऐसे आलि आल मुहम्मद। अगर एक मिनट अगर ऐसे आल लगाते हो ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से फिर याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो है कुछ तो यहूदी भी है, फिर उनका क्या करोगे तुम? नहीं तो फिर एक बात बताओ मुझे कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काफिर हुए? हाँ हुए। ठीक, और हम आदम की औलाद हैं। हाँ। गैर मुस्लिम भी हैं। हाँ। ठीक है, तो आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, तो हम अपने आप को नबी के बेटे बोले? अच्छा लग रहा है वैसे तो। सुनो मेरी बात ध्यान से। वैसे तो सब पैगंबर रूहानी बाप ही होते हैं हाँ, सब सुनो मुसलमानों के। सुनो मैं तो, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना कि मेरा नबी किसी का बाप नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ तो अल्लाह ने कैद लगा दी, लेकिन अगर आप अपनी मंतिक लगा रहे हो तो फिर ये मंतिक यहाँ बैठ रही है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है, ऐ सहाबा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक क्या? किताबुल्लाह, और दूसरी मेरी अहले बैत।
अहले बैत हाँ मेरी इन सुन्नत है। हाँ वो तो दूसरी हदीस है, ये दूसरी हदीस है। मेरी अच्छा अहले बैत, इन दोनों में से किसी को मत छोड़ना, अगर किसी को छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। अब अल्लाह ने किताबुल्लाह के साथ ये कौन सी सहाबा भी हदीस कह में है? सकते ये भी सियासित्ता में अहले दे दूंगा अहले मैं, अहले बैत वाली कौन सी हदीस में है? सियासित्ता में है, दे दूंगा। सियासित्ता की अच्छा हदीस है। अच्छा सुनो, अब अल्लाह के रसूल ये भी कह सकते थे कि मैं अपने सहाबा को छोड़े जा रहा हूँ, है ना, लेकिन बात तरीके यहाँ को पे कहा है ना उन्होंने तो। नहीं नहीं, मेरी अहले बैत को मत छोड़ना। अब देखिए सुनिए, मैं बताता हूँ। सहाबा का सिलसिला हुजूर तक था। जिसने अपनी माथों की आंखों से हुजूर को देखा वो सहाबी हुआ। जिसने सहाबा की जियारत की वो ताबई हुआ। ठीक है, तो सहाबा का सिलसिला वहां पे हो गया खत्म। ठीक है, अहले बैत का सिलसिला खत्म नहीं होगा, आल चलती रहेगी। ठीक है, और वो आल हम तक आई, आले रसूल हम तक आए, सैयद हम तक आए। ठीक है, ये चैन चलती रहेगी। तो तुम्हारे वहां हदीस का मकसद ये है कि मेरी अहले बैत का दामन मत छोड़ना और कुरान को मत छोड़ना। अब सुनो, यहाँ से मुराद ये हुआ कि कुरान को सीखना तो अहले बैत से सीखना, किताबुल्लाह अब हम और हदीस। एक मिनट, आपने जब कहा था कि अब आदम इस्लाम की औलादें कुछ गुमराह भी हो गई हैं, ठीक है, याकूब इस्लाम की औलादों में से भी कुछ गुमराह हो गई हैं, है ना। हमें इतनी डीप में जाना ही नहीं है ना, हम तो उम्मती हुजूर के हैं ना, हमें हुजूर की आल से हाँ तो मतलब है ना। हुजूर के हैं तो वो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि उधर भी जाना पड़ेगा हमें उधर क्यों जाना समझने पड़ेगा? के लिए। हमारी तो उम्मत ऐसे ही है इनकी तो नबी की उम्मत में जिनकी तुम हाल कह रहे हो ना, हमें कैसे पता कि वो हिदायत पे हैं या गुमराह हैं या नहीं है, तो हमें तो नहीं पता ना। हम उनके दिल में थोड़ी झांक रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जो अल्लाह के वली होते थे ना, जैसे मैं एक वाकया बताता हूँ आपको। अल्लाह के वली जो होते हैं ना, वो सैयद को पहचान लेते हैं विलायत की आंखों से। और जो सैयद की खुशबू होती है ना, जैसे आला हजरत का एक वाकया है कि आप एक पालकी में जा रहे थे, तो आपने पालकी रुकवाई, नीचे उतरे, पालकी उठाने वाले में एक सैयद थे, तो आपने कहा कि खुदा की कसम खा के बोलो तुम में से सैयद कौन है? उन्होंने कहा हजरत मैं हूँ। क्या मुझे खुशबू आ रही है सैयद की? क्या मैं हूँ। कहा कि तुम मेरी पालकी उठा रहे हो, मैं अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा महशर में, तुम पालकी में बैठो, मैं उठाऊंगा पालकी। तो सैयद की जो खुशबू और सैयद का जो क्या कहते हैं मकाम है, वो वली पकड़ लेते थे कि ये सैयद हैं। तो हर सैयद की इज्जत करनी होगी। बिल्कुल। अगर किसी ने ये कह दिया कि हम सैयद हैं, तो एक सैयद हमारे बहनों के गांव में है, वो भी तो अपना सैयद कहता है, उसका क्या करूँ मैं? उसने तो मेरे पैसे मारे हैं। हाँ नहीं है आपका। अच्छा एक बात बताओ, एक अपने आप को कलेक्टर कहता है और एक कलेक्टर, सुनिए तो सही, एक कलेक्टर जो रियल फर्जी में है। सैयद हैं। बात तो सुनो बाबा, एक सैयद है ओरिजिनल, एक सैयद है जो अपने आप को सैयद बनाते हैं। जैसे आप अजमेर जाओगे ना, तो जितने रावजी है ना, वो अपने आप को सैयद लिख रहे हैं। अच्छा। सैयद कामरान चिश्ती, सैयद सरवर चिश्ती। ठीक है, तो उसकी पहचान करना उसके इल्म से पता लगेगा, उसकी इखलाक से पता लगेगा। लेकिन वो शियाओं में से नहीं है, घर के सुन्नियों में से ही है। सुन्नियों में से हैं। अगर सुनो, अगर सुन्नियों में से हैं और अगर सैयद है तो उनका शजरा मांग लो आप, कि शजरा दिखाइए, अपना नसब नामा दिखाइए। अगर उनका शजरा हुजूर तक मिल गया तो ठीक है। समझे नहीं समझे? अच्छा। आप सुनिए मेरी बात। तो हम थे या कना बुदू वैया कनस्ताइन पे। यहाँ से जो मुराद है वो अल्लाह की जात मुराद है। अल्लाह हकीकी मददगार अल्लाह है, हकीकी मददगार अल्लाह है। अब आप आ जाइए सूरह तहरीम आयत नंबर 4 पे। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह, जिब्राइल, नेक मोमिन स्वालिहीन बंदे और तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर हैं। किसकी मदद पर हैं? कुरान पे तो कोई कैद नहीं है ना। किसकी मदद पर हैं वो? सबकी मदद पर है।
सबकी कहाँ नाजिल तो नबी इस्लाम पे हो रहा था ना, क्योंकि उनको लोग परेशान कर रहे थे, उनकी मदद के लिए है ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम जा रहे सारे तो फरिश्ते। ये आयत मंसूख हो गई फिर। हैं? बोलो तो बोलो। तुम कह रहे हो हमारी मदद के लिए हैं सारे के सारे। अच्छा, तुम्हारे कंधे पे फरिश्ते हैं? हाँ है, कितने हैं? तो मेरी मदद थोड़ी करते हैं कोई। अभी बता रहा हूँ ना कैसे मदद करेंगे। कितने फरिश्ते हैं? 2 है। 2। तुम अगर कोई नेक काम करते हो तो तुम्हारे दाहिने हाथ का फरिश्ता उसको लिखता है। चलो, तो वो नेक काम जो लिखता है वो कहाँ बताएगा? अल्लाह इधर बताएगा। मदद की ना? मदद कहाँ हो गई वो तो हुक्म है अल्लाह का, लिखना उनकी मजबूरी है। अरे तो अल्लाह ही ने तो भेजा है ना कि तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर है। अरे तो वो गवाही के तौर पर लिखेंगे ही, वो अगर इंसान अरे इनकार तो कर दे कि अल्लाह मैंने ही तो तो कुछ किया ही नहीं है, तो फिर हाँ, सबूत क्या रहेगा? तो इसका मतलब अल्लाह अलीमुल गैब नहीं है। ओहो, इंसान को यकीन दिलाने के लिए ऐसे हंसने से कोई फायदा थोड़ी होगा। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह को इंसान की क्या जरूरत है, फरिश्ते की क्या जरूरत है तुम्हारी मदद के लिए? वो तो तो डायरेक्ट ऐसे तो अल्लाह जानता हर है। चीज जानता है, सारों का फैसला करते हुए। ऐसे तो तुम्हारे मैं कहना मान लो तो मैं सुनो मेरी बात सुनो। अल्लाह अगर चाहे ना तुम्हारी जुबान को हुक्म देगा कि तू सच बोल, तुम्हारी हाँ, जुबान बोल देगी। पट पट बोलने लगेगी। हाँ, ठीक है, तुम्हारे कान को हुक्म देगा, तुम्हारे कान पट पट बोलने लगेंगे। ठीक है, तुम्हारी आंख को हुक्म देगा कि तूने किससे क्या क्या देखा, वो पट पट बोलने लगेगी। अरे जो जमीन बोलने सुनो लगेगी ना जहाँ भाई, गुनाह करा होगा, हाँ वो तो तो भाई बात सुनो सही ना, है। हाँ भाई तो सुनो ना, तो फरिश्तों को अल्लाह ने तैनात किया ना, तो फरिश्ते तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर है ना या नहीं है? चलो ठीक है, मैं आप 100 बात की एक बात कहता हूँ, अगर ये नहीं, सारी एक चीजें मिनट, मदद एक पे हैं मिनट तो सुनो, हम इनसे सारों सुनो। से दुआएं मांग सकते हैं। बिल्कुल ये है मांग ना। सकते हैं। अब सुनो कैसे, फरिश्ते सुनो कैसे, बरसात डालने में ड्यूटी किसकी है? सुनो कैसे। फरिश्तों की है ना। तो अल्लाह बरसात बरसाने तो पे हम कादिर नहीं है? बरसात दुआ मांगते हैं फरिश्तों से कभी? चलो ठीक है, यहाँ से जात मुराद ले रहे हो या अताई मुराद ले रहे हो? मुराद तो वहीं ली जाएगी जहाँ आप ले रहे अच्छा हो। एक मिनट सुनो, अगर मैंने ये कहा ऐ बारिश बरसाने वाले फरिश्ते, अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, कुव्वत दी है, तो बारिश अता फरमा, तो ये गलत है सही है? अगर तो बरसात बरसा तो ये अल्लाह ने ताकत दी है, कुव्वत दी है। तुझे इख्तियार दिया है बारिश बरसाने का, तो हम डायरेक्ट फरिश्ते को हुक्म दे सकते हैं। हाँ। जैसे मिसाल के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम सूरह आले इमरान में आयत है, अल्लाह के रसूल ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मट्टी से परिंदा बनाता हूँ। ठीक है, हाँ, वो तो मट्टी मैंने से परिंदा बनाता हूँ और उसे हुक्म देता हूँ, कुम बिइज़्निल्लाह, वो जिंदा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह ने ताकत दी ना। हाँ। उसके बाद मैं मुर्दों को जिंदा कर लेता हूँ और मैं पैदाइशी जो नाबीना हो उसको ठीक कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। हाँ, तो किसने दी ये कुव्वत? जाती मददगार कौन है? वो तो दुआ करते थे ना, तभी तो ठीक होते थे वो। सुनो मेरी बात, हाँ मेरी बात, तो बात सुनो, बात आप ये सुनो, कहना बात चाहते हो सुनो, कुव्वत दे दी उन्हें, अब वो खुद कर बात तो सकते हैं। सुनो बाबा, बात सुनो। एक इंसान पूरी जिंदगी अल्लाह से दुआ कर रहा है कि अल्लाह मुझे तूने नाबीना बनाया, मेरी आंख दे दे। ठीक है, और एक इंसान को ये पता लगा कि अल्लाह के ये नबी हैं, ये आंख की रोशनी दे रहे हैं अल्लाह से लेकर। वो इंसान ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ईसा अल्लाह ने आपको कुव्वत दी है, मेरी आंखों की दिनाई लौटा दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ दस्ते मुबारक उनकी आंखों पे फेरा और कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हो जा। उसकी आंख ठीक हो गई। तो नेक आदमी सामने दुआ तो करवा सकते हैं, इससे कोई मैं इनकार थोड़ी कर रहा हूँ। अभी तुम सब कुछ उगलोगे, अभी तुम शांत रहो, अभी तो तुम्हें सिर्फ मैं जाती पे ला रहा हूँ ना, अभी तो तुम्हें मैं कहाँ कहाँ ले जाऊंगा, सुनते रहो। इस पे तो मेरा कभी इनकार ही नहीं था। सुन तो लो बाबा, सुनो। ये हो गई बात, ठीक। तो यहाँ से तुमने ये मान लिया कि अल्लाह की अता से वो मदद कर सकते हैं? वो खुद करते हैं अल्लाह की अता से। कर सकते हैं ना? तो अल्लाह ने उन्हें खुद अता कर दी ताकत, अब तुम मदद कर सकते हो। हाँ, ये माना ले रहे हो? हाँ अब सुनो, ये माना ले रहे हो? हाँ अब सुनो। अब वो ताकतवर खुद ही होगा इसका मतलब? फिर वही खुद हो गए। अरे अल्लाह ने दे दी ना उनको ताकत। हाँ, उनको दे दी तो खुद ही हो गए ना फिर। हाँ, तो अल्लाह के रसूल जब दुनिया में मौजूद थे तो साहबा अल्लाह के रसूल के पास जाते थे, मदद लेने नहीं जाते थे? हाँ, हर कभी पानी के लिए, कभी दुआ बारिश के करवाते लिए। थे उनसे। हाँ,
दुआ, अच्छा ये बताओ कि एक मौके पर वजू का पानी खत्म हो गया, ठीक है, अब ध्यान सुनो, अब तुमने जो दुआ की बात की है ना, तो तुम्हें मैं समझा दूं अच्छे से। एक मौके पे वजू का पानी खत्म हो गया, पानी नहीं था, अल्लाह के रसूल बैठे थे, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह उंगली में वजू के लिए डुबाई। पानी नहीं है। हेलो, हाँ सुन वजू, रहा हूँ कि हाथों से पानी निकल आया था। हाँ तो दुआ क्यों नहीं की अल्लाह ने, अल्लाह से, रसूलुल्लाह ने हाथों से क्यों निकाला? अल्लाह ने इख्तियार दिया उनको। और सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरे हाथों की हथेली, ठीक, और मुझे तमाम जहानों की कुंजियां अता की गई है, और मैं तुमसे पहले महशर में जाऊंगा और मैं तुम सब पे गवाह रहूंगा, तुम पे भी गवाह रहेंगे हुजूर। हाँ वो तो है। तो कैसे गवाह रहेंगे? वो तो हुजूर तो चले गए दुनिया से, कैसे पता लगेगा उनको? आप सुनिए, हदीस सुनिए, हुजूर तो फरमाते हैं, ये गवाह हमारे लिए भी रहेंगे, ये मतलब है इसका? हुजूर ने फरमाया ना, मैं तुम सब पे गवाह रहूंगा कयामत के दिन। तुम सबका मतलब का, तुम उनकी सब, आने वाली जो अब उम्मत जो चल रही है वो भी है बिल्कुल, उनमें। हाँ ये हदीस पढ़ के बता रहा हूँ तुम्हें, सुन लो, तुम सब पे गवाह रहूंगा मुझे मैं। लगता है खाली उनको कहा था कि मैं तुम्हारे लिए गवाह रहूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, वहाँ किसी का नाम लिया है क्या? आप सुनो, आगे सुनो। अल्लाह के तुम्हारे लिए रसूल, का मतलब तो उनको ही हुआ ना, अब सबके लिए थोड़ी कहा हो। मैं बता रहा हूँ ना, तुम सब पे गवाह रहूंगा, इसका पूरा बता तो रहा हूँ, सुन तो लो ना बाबा, सुन लो पूरी बात को, मेरे ध्यान से उतर गई मैं क्या बता रहा था। तमाम जहानों की कुंजी अता की गई है, हाँ, तमाम जहानों की कुंजी अता की गई है, और खुदा की कसम मैं यहाँ से अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। हाँ वो तो देख लेते जन्नत तक को बैठे बैठे। ठीक है, अब आगे फरमाते हैं कि ए सहाबा, ठीक है, तुम कसरत से पीर के दिन, पीर के दिन मुझ पे कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करो। हाँ दुरुस्त तो पढ़ना चाहिए सर, ठीक है, 10 नेकियां सुन तो, मिलती हैं। हाँ सुन तो लो, तुम कसरत से मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूद व सलाम मुझे पीर के दिन पेश किया जाता है, और जिसके नामाए अमाल अच्छे होते हैं मैं खुश होता हूँ, और जिसके नामाए अमाल अच्छे नहीं होते मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। किसके लिए करते हैं? हमारे लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है ना। अब पेश होता है, कहाँ पेश होता है? कब्र मुबारक में। हुजूर जिंदा है? हाँ जिंदा है, वो कौन कहता है? गधा तुम्हारे गधा हाल ही को, होगा जो कहेगा मुर्दा है। तुम्हारे हाल को जान रहे हैं इस टाइम? इस टाइम अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि अल्लाह के रसूल अपनी कब्र मुबारक से जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। ये कुरान और हदीस की नस्से कतई से साबित है। जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। ये अल्लाह के रसूल और को एक इख्तियार चीज है, क्योंकि इमाम जलालुद्दीन तो स्वीती रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने बेदारी में हुजूर मैं की 42 इस पे मरतबा मेरे, जियारत की है। ये तो खैर मेरे मतलब ये जो बात है इससे तो मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, इससे कोई मेरा इख्तिलाफ नहीं है। चलो मेरा इख्तिलाफ इख्तिलाफ नहीं ये है, है, इख्तिलाफ नहीं है। ये अब है कि सुनिए, सुनो सुनो, मैं हाँ। ला रहा हूँ तुम्हें ला रहा हूँ लाइन पे। सूरह निसा आयत नंबर 64, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, मेरी नबी की बारगाह में हाजिर हो, और मेरा नबी तुम्हारे हक में दुआ कर दे, तो तुम अल्लाह को बेशक बख्शने वाला पाओगे। ठीक है, कितना सूरह निसा निसा आयत आयत नंबर नंबर 64, 64? 64 या 59, ये दो में से एक है, 64 है या 59 है, एक मिनट। खोल लो। दुआ पाओगे। बात करें अभी। सूरह इखलास सीखा? कुल वल्लाह सुनाओ, चलो पहले जल्दी सुनाओ। अलिफ लाम मीम याद हो गया बेटा? कहाँ तक याद हुआ? सुनाओ सुनाओ, चलो थोड़ा तो सुना दो। माशाल्लाह। हाँ हाँ। हम्म।
माशाअल्लाह, पूरा याद हो गया अलिफ लाम मीम है? हाँ। कहाँ चले गए भाईजान? बेटा हाँ, तो ये तो उन लोगों की बात हो रही है जो भटक गए थे। है? आयत है ना इसमें से, दोबारा पढ़ता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। पढ़ो। रसूल उन लोगों ने नाफरमानी, हाँ, नबी इस्लाम जिन लोगों ने नाफरमानी की, हाँ। आगे पढ़ो। फिर वो नबी इस्लाम के पास आए तो नबी इस्लाम ने उनके लिए दुआ की तो अल्लाह ने उन्हें, पूरी आयत पढ़ो ना। हाँ, कि यही है कि अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। हाँ, पूरी आयत पढ़ो शुरू से। ये कुरान किसका कुरान तुम किसका पढ़ रहे हो? तर्जुमा किसका है ये? शुरू में क्या नाम है? पढ़ के बताओ मुझे। देखो, और जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, उन लोगों ने नाफरमानी करके अपनी जानों पर जुल्म किया था। अगर तुम्हारे पास चले आते और खुदा से माफी मांगते और रसूल तुम भी उनकी मग़फ़िरत चाहते तो बेशक लोग खुदा को बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाते। ये तर्जुमा गलत है। तर्जुमा है गलत है। ये किसका कुरान किसका तर्जुमा है? ये पढ़ना जरा। शुरू में नाम क्या है? नाम नहीं आता इसमें। ये कहाँ नेट से निकाला है? हाँ। ये तर्जुमा गलत है। भाई कंजुल ईमान पढ़ा करो आप, आला हजरत का। कंजुल ईमान भी मैंने पढ़ा, लेकिन कंजुल ईमान पता क्या दिक्कत लगती है मुझे? मैं उसे पढ़ता हूँ ना तो कई आयत ढंग से पढ़ नहीं पाता, अटक अटक के जुबान चलती है उसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसका तर्जुमा पढ़ोगे ना, ये चूनागढ़ी का तर्जुमा है। अगर आप इनके तर्जुमे पढ़ोगे ना तो खुदा की कसम गुमराह हो जाओगे। पता कैसे? बता देता हूँ मैं। इस आयत का जो पसे मंजस है वो ये है कि ए नबी, ए लोगों, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, जुल्म का मतलब है गुनाह कबीरा, तो मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो और मेरा नबी तुम्हारे हक में दुआ कर दे तो खुदा को बेहतर बख्शने वाला पाओगे। अब सुनिए, इस आयत में हदीस सुनिए। एक साहबी रसूल थे, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। कहा या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा मैंने रमजान में रोजे की हालत में बीवी से सोहबत कर ली। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है, अब कफारा दो। कफारा क्या? 70 रोजे रखो। तो आपने फरमाया या रसूलल्लाह इतनी हिम्मत तो नहीं है, मैं तो खुद कमजोर हूँ। कहा तो ठीक है 70 फकीरों को खाना खिलाओ। तो या रसूलल्लाह मैं खुद इतना गरीब हूँ, कहाँ से खिलाऊं? ठीक है, सुना हाँ, अच्छा लगता है। सुन तो लो। उसके बाद हुजूर की बारगाह में कुछ खजूरें आई। आपने कहा कि ये लो खजूर और जाओ गरीबों में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा हो गया। ठीक है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मदीने में मुझसे गरीब कौन है? कहा ठीक है, जाओ तुम अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ इसको खा लो, तुम्हारा कफारा हो गया। ये तो नहीं है। तो उन्होंने गुनाह कबीरा करके कहाँ आए? हुजूर की बारगाह में। अब तुमने जो गुनाह कबीरा किया, तुम कहाँ जाओगे? अल्लाह तो भेज रहा है हुजूर के पास। तो हमें ये जरूरी नहीं कि हम मदीने जाएंगे, समझ रहे हैं? लेकिन अगर इससे मुराद ये लोग के तो ये मददगार, अरे भाई सुनो, 1 मिनट सुनो, कि हमारे लिए अब भी हुक्म जारी होता है। तो ये आयत मंसूख हो गई। कुरान कयामत तक के लिए है ना। कयामत तक के लिए तो सारी आयत कयामत तक के लिए क्यों नहीं मानते फिर? तो सारी आयत तो कयामत तक मानते हैं। नहीं, फिर ये जो ये काम करे वो काफिर नहीं हो जाता है? कौन सा? जो शिर्क करे। तो शिर्क की तारीफ क्या है पता तुमको? मैंने तुमको क्या बताया? जिस आयत में मिन दूनिल्लाह है, मिसाल के तौर पे कुरान में आयत है कि अल्लाह के रसूल से फरमाता है अल्लाह के रसूल। मिन दूनिल्लाह जो आयत अगर किसी से फिट हो जाए फिर वो क्या कहलाएगा? वो आयत कुफार, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे सूरे आप हज ले लो, 73 आयत है ना, उसमें अल्लाह कहता है लोगों कान लगा के सुनो, तुमसे एक किस्सा बयान किया जा रहा है।
جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کی اصل یہ ہے وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اس میں سے مکھی کچھ لے کے اڑ جائے تو تم اس کو لے بھی نہیں سکتے، چھین بھی نہیں سکتے، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تو یہاں سے مراد وہ بت ہیں، وہ کفاروں کے بت ہیں جو مکے میں رکھے ہوئے تھے، جو حیات، حول اور ملات، جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتاؤ، آج کی تاریخ میں ایک بندہ مسجد جا رہا ہے، ایک بندہ مندر جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو چلو صحیح ہے، لیکن ایک یہی آیت تو تھوڑی ہے اسی کہ کتنی آیتیں ہیں قرآن کے اندر؟ ہاں، جتنی بھی آیت ہیں جس پہ من دون اللہ آ جائے، اسی پہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وہ خارجی ہیں، وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں جو کفاروں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں پہ چسپاتے۔ یہ آج نہیں چسپائی جا رہی ہے، یہ صحابہ کے ٹائم سے شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، تو یہ جو آیت کیا کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہمارے خدا کے یہاں سے پارسی ہوں گے، یہ آیت تو پڑھی ہوگی نا تم نے سورہ یونس کی؟ یہی جو خدا کے سامنے پارسی ہوں گے، تو اس کا پس منظر معلوم ہے؟ جیسے ہمارا یہ نہیں، تم عقیدہ ہے، بتاؤ۔ جیسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بت بنا دے اور یہ کہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بت ہے اور یہ ہمارا قیامت میں پارسی ہوگا، وہ کافر ہے۔ اچھا سمجھ گئے؟ اچھا، وہ یہ کافر ہمارے ہے، سے پارسی ہوگا؟ ہاں وہ کافر ہے۔ اور جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں، ٹھیک ہے نا، بت سے ہٹ کے، کہ جو مدینے میں تشریف فرما ہے وہ ہمارے نبی ہیں اور وہ قیامت میں ہمارے گواہ رہیں گے، وہ مسلمان ہے۔ اور جو حضور کا بت بنا لے، جو اس کو حضور کا اسٹیچو بنا لے اور کہے کہ یہ ہمارے کیا کہتے ہیں اللہ کے پاس سفارشی ہیں اور یہ ہمارے نبی ہیں، ہم تو انہی کو وہ نبی مانتے ہیں، اس بت کے اوپر ایمان رکھے ہوئے ہم نبی مانتے ہیں، وہ کافر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میں انشاءاللہ کروں گا کسی دن۔ تو ایسی باتیں کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت چھن جائے تم سے۔ کیوں ہدایت کو سمجھے گی؟ زیارت کرنا کو بڑی بری بات ہو رہی ہے۔ منہ سے کفر نکالنا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب زیارت کرنا غلط بات ہے؟ منہ سے کفر نکالنا، کفر کہاں ہے؟ تو صحیح تو ہے۔ ارے اس کی بات نہیں کرنا، جو باتیں تم کرتے ہو نا، کون سی؟ ابھی جو تم نے کہا، چلو اب وہ ساری باتوں کا نچوڑ ختم کر دوں، ٹائم بہت ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، اب میں ساری باتیں آپ کو ختم کر دیتا ہوں۔ میں آپ کو ایک اس طریقے سے سمجھا کے لے جاؤں گا، آپ کے دماغ میں بات آ جائے گی۔ میں شروع کرتا ہوں، دھیان سے سننا۔ جیسے مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں، 1 منٹ۔ جیسے ایک مٹھائی کی دکان ہے، پورے ایریے میں آپ کے کوئی ایک مٹھائی کی دکان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندے نے شروع کی ہے مٹھائی کی دکان، اور اس نے ایک بورڈ لکھا، بورڈ پہ لکھا کہ یہاں پر تازہ مٹھائیاں ملتی ہیں۔ دھیان سے سننا بات کو۔ اب 1 مہینے تک تو اس کی دکان سے مٹھائیاں بکتی رہی۔ اب اس میں کچھ پڑھا لکھا آدمی آ گیا، قابل آدمی، وہ مٹھائی کی دکان پہ جاتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ تو صحیح ہے بورڈ، لیکن جو تم نے یہاں پہ تازہ لکھا ہے نا، یہ تازہ ہٹا دو۔ لوگوں کے دل میں شبہ آتا ہے کہ بھائی تازہ لکھنے سے تازہ تھوڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے لکھا وہاں پہ یہاں مٹھائیاں ملتی ہیں، تازہ ہٹا دیا۔ اس کے بعد وہ بڈھا مر گیا، اس کا بیٹا بیٹھا دکان پہ، ٹھیک ہے؟ جس نے دکان کھولی وہ شخص مر گیا۔ اب اس کے بیٹے کے پاس کوئی شخص آیا، کہا بھائی یہاں سے مٹھائی کو مٹھا دو۔ کہ یہاں ملتی ہے مٹھائی، تو تمہاری دکھ ہی رہی ہے۔ اس نے مٹھائی مٹھا دی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کا بیٹا آ گیا کچھ دنوں کے بعد۔ پھر اس نے کہا بھائی یہاں پہ نا، یہاں ہٹا دو، ملتی رہنے دو، ٹھیک ہے؟ اب ملتی ہے، رہ گیا، ٹھیک۔ اب
ऐसे दिन चलते रहे, फिर उसका एक काबिल बेटा आया, तो उसके वालिद का, जो उसके दादा जो गए दुनिया से, उसके दादा का दोस्त, अल्लाह ने उसकी उम्र बहुत बड़ी कर दी, उसके दादा का दोस्त आता है, कहता भाई एक बात बताओ, मेरे दोस्त ने जब ये दुकान शुरू की थी तो यहाँ तो लिखा था यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ मिलती, ये सब हटाया किसके कहने पे तुमने? तो कहा कि हमने उसके कहने पर हटाया। कह रहा दुकान तुम्हारे अब्बा ने, दादा ने खोली थी ना, उसने थोड़ी खोली थी, दुकान पे हुक्म तुम्हारा चलेगा ना, उसका थोड़ी चलेगा। यहाँ पे लिखो यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है, तो उसने लिख दिया दोबारा यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है। बात समझ में आएगी ना? अब आएगी। इसी तरीके से जब हिंदुस्तान में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, उन्होंने हदीसें सबसे पहले हिंदुस्तान में वो लेकर के आए। उन्होंने हदीसें बताई कि ये बुखारी है, ये मुस्लिम है, ये तिरमिज़ी है, इसको ऐसे समझना है, इसको ऐसे समझना है, इसको ऐसे समझना है। उन्होंने दीन फैलाया। उन्होंने तमाम बुजुर्गों की किताबों को इकट्ठा किया कि किस बुजुर्ग ने क्या क्या लिखा है, किस बुजुर्ग की कैसे एहतराम करना है, किस बुजुर्ग की कैसे ताजीम करनी है। ठीक है, तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवे की किताब लिखी। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया नकल किया उनकी किताब से। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे मुरीदो, तुम ये मत समझना कि मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, ठीक है, तुम्हारी आंखों से ओझल हूं, और मेरा बंदा मशरिक में हो और मुझे मगरिब में आवाज दे तो मैं उसकी आवाज को सुनूंगा और उसकी मदद भी करूंगा। और ध्यान रखो, मैं तुम्हें नसीहत करके जाता हूँ, तुम अल्लाह से जब भी दुआ करना मेरे वसीले से करना, ठीक है। अब इस इबारत को उन्होंने अपनी किताब में नकल किया फतवे में कि गौसे पाक की किताब से ये नकल है। गौसे पाक की किताब, गौसे पाक ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी, उन्होंने नकल किया, इकट्ठा किया, और उन्होंने कहा कि खुदा की कसम, मैं जब भी किसी मसले में फंसता हूँ तो मैं गौसे पाक का वसीला लगाता हूँ, मेरा वो मसला हल हो जाता है। तो ना तो हमारी जुबान अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह जैसी है, ना हमारा अमल है ना। तो जो चीज हमें, वो शख्स, वो अल्लाह का वली, वो अल्लाह का बेहतरीन आलिम जिसने हिंदुस्तान में हदीसें फैलाई, हदीसें लाए, हमें हदीसें पहुंचाई हम तक, जो वो चीज हमें सिखा के जाएंगे हम वो सीखेंगे, या आज के तो देवबंदी वहां भी हमें सिखाएंगे हम वो सीखेंगे? अगर डायरेक्ट हदीस ही पढ़ लें तो? देखिए डायरेक्ट, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे एक इंजीनियर है, उसने इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस की और वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर बना, ठीक है। अब उसको पूरा मालूम है कि ये बोर्ड कैसे फिट होगा, ये तार कैसे फिट होगी, ये तार कहाँ से फिट होगी। आप उसके पीछे गए, आपने उसको देख लिया कि इसने ये तार ऐसे जोड़ दी, ये तार ऐसे जोड़ दी, और आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, वो जुड़ गई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंजीनियर बन जाओगे। इसी तरीके से हदीस को समझने के लिए जब मुहद्दिस का गिरोह, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि असहाबुल हदीस की एक जमात होगी जो हक पर होगी, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हक पर रखेगा, और कुछ लोग उनकी तलखी करेंगे, उनका कुछ बिगाड़ ना पाएंगे, वो मुहद्दिस का गिरोह होगा। असहाबुल हदीस से मुराद मुहद्दिस का गिरोह, जिनको 4 लाख 5 लाख हदीसें बिना सनद मतन के याद होती थी, ठीक है। तो जब किसी हदीस को जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे बुखारी की पढ़ते हैं हम हदीस, तो इमाम बुखारी की हदीसों की शरह फतहुल बारी शरह बुखारी में मिलेगी, इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने की है, और एक हदीस के कई मतलब बनते हैं, और हदीस भी मुतशाबिहात होती है, महकम होती है, और हदीस भी मंसूख होती है। ध्यान रखना, हदीस मंसूख होती है, कुरान की आयत मंसूख नहीं होगी। जैसे अल्लाह के रसूल ने सजदे से उठ के रफ़ेदैन किया, उसके बाद फिर तर्क किया, तो वो हदीस मंसूख हो गई, लेकिन है बुखारी में। लेकिन हाँ, ये चीज तो भूल ही गया मैं। लेकिन फिर घर के क्या नाम है, ईद पे रफ़ेदैन करते हैं, उसका क्या? वो वाजिब नमाज है ना। तो फिर अगर कैंसिल होनी थी तो फिर वो भी हो जाती? नहीं,
देखिए वाजिब जो होती है ना नमाज, फर्ज और वाजिब में फर्क है। वाजिब जो होती है ना, जैसे 3 रकात वित्र की वाजिब है, जैसे हम हर रोज पढ़ते हैं ना। हेलो, नहीं, तरीके को अगर मंसूख कर दिया गया तो ये क्यों नहीं तरीका मंसूख हुआ? ये तो मैं मकसद ये बता है रहा मेरा हूँ, बोलने का। मैं बता रहा हूँ। जो नमाज ईदैन है, अच्छा ये बताइए, कोई आपसे ये सवाल करे कि भाई कुरान में तो 5 टाइम की नमाज आई है, आई है ना, तो ईद के दिन तुम 6 टाइम नमाज क्यों पढ़ते हो? क्या जवाब दोगे? अभी मेरे पास जवाब नहीं, इसलिए कुछ जवाब ही नहीं दूंगा मैं। हाँ, इसीलिए ये जो नमाज है ये वाजिब है, और वाजिब को फर्ज से अलग करने के लिए रफ़े दैन किया गया। जब हुजूर ने हमें सिखाया तो हमने किया, मुहद्दिस ने हमें सिखाया तो किया, ताबई ने सिखाया तो किया, तबे ताबई ने सिखाया तो किया। आज की तारीख में जो ये कहे कि भाई मोहम्मदी नमाज हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो ये कहे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे चलते हैं, जो ये कहे कि हम हुजूर की सुन्नत पे चलते हैं, वो नहीं चल पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब तुम अहले हदीसों अहले हदीसों के पास जाते होगे तो वो ये कहते हैं हम कुरान हदीस पे चलते हैं, तो उनसे ये पूछना क्या सब हदीसों पे अमल करोगे? तो मजबूरी, जब चलते हो तो अमल तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब देखो हदीस नंबर 144 बुखारी शरीफ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब भी तुम बैतुल खला में जाओ तो किबले की तरफ रुख ना करो, मशरिक की तरफ रुख करो। क्या फरमाया? मशरिक की तरफ मुंह करो, ठीक है। अब ये हदीस मदीने में नहीं चलेगी। अगर तुमने मशरिक की तरफ मुंह करा तो किबले की तरफ जाएगा, और मगरिब की तरफ मुंह करा तो हदीस का इनकार हो जाएगा। क्या करोगे? तो तुम्हें वहां मजबूरन आलिमों की ना 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 खुद एडजस्ट नहीं करोगे, मजबूरन आलिमों की तकलीद करनी पड़ेगी तुम्हें, फिर तुम भागोगे आलिम की तरफ। तो वो एडजस्ट कर लेगा तो फिर वो आलिम ही कहलाएगा, देखा जाए तो। वो एडजस्ट करेगा तो आलिम ऐसे तो कैसे एडजस्ट कहलाएगा? करा ना आलिमों ने भी। नहीं तो अच्छा एक मिनट, मदीने तुम पहली बार गए, तुम्हें वहां पता लगेगा कि मशरिक किधर है मगरिब किधर है? वो तो अंदाजा लगाना पड़ेगा दिशा के हिसाब से। तकलीद करोगे ना, फिर देख कर ही तो करोगे ना। अब ऐसी एक हदीस और है, एक मिनट रुक जाओ, ज़हन से उतर गई, कौन सी है? हाँ सुनो, एक हदीस ऐसी है कि तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देता हूँ अभी मैं 10 मिनट में। ये बताओ, जिंदा करने की और मारने की जात किसकी? अल्लाह की। वही मारता है, वही जलाता है, और वो चाहे तो अपने नबी को दे सकता है, इख्तियार दिया है, ठीक है ना, और वो चाहे तो अपने नेक बंदों को इख्तियार दे सकता है, ठीक है। चाहे तो, हाँ चाहे तो, वो उसकी मर्जी है, ठीक है, और उसने दिया है। हाँ उसने दिया है। अब ये बताओ कि क्या किसी काफिर को देगा वो इख्तियार जिंदा करने का? गैर नबी को देता ही नहीं होगा ऐसी ताकत। अच्छा, अब हदीस सुनो, हदीस है बुखारी शरीफ की, हदीस का नंबर है 868 गालिबन, भेज दूंगा तुम्हें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दज्जाल को जिंदा किया जाएगा तो एक शख्स उसके पास जाएगा। दज्जाल कौन है मालूम है ना? हाँ शैतान है, खुदाई दावा करेगा। तो एक शख्स उसके पास जाएगा और कहेगा कि तू वो दज्जाल है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें खबर पहले दे दी। तो वो दज्जाल उससे कहेगा क्या मैं तुझे मार के जिंदा कर दूं तो तू मुझ पे ईमान लाएगा? तो उसने कहा कि नहीं, तो उसको वो मार देगा दज्जाल, और मार के फिर जिंदा कर देगा, ठीक है। और फिर वो कहेगा कि अब तो 100% मुझे यकीन हो गया कि तू वही दज्जाल है, तो मैं तुझ पे हरगिज ईमान ना लाऊंगा। उसके बाद अल्लाह की कुदरत फिर उसको दोबारा उसको मारने का इख्तियार नहीं देगी। अब बताओ दज्जाल को कैसे मिल गया? अब इस हदीस पे कैसे अमल करोगे? ईमान लाओगे इस हदीस पर? ये तो इम्तिहान है देखा जाए तो मैं वही कह रहा हूँ, हर हदीस पे ईमान नहीं ला सकते तुम, हर हदीस पे चल भी नहीं सकते।
یہ پتہ کیا ہے، ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سیدھی سی صاف بات ہے کہ یہ جو 200 سال سے اہل حدیثوں نے ہندوستان میں جو قدم رکھا ہے نا، سمجھے، سب سے پہلے انہوں نے کیا موٹیو لیا تھا کہ جب دیکھا انہوں نے کہ بھائی بریلوی، اس ٹائم بریلوی جو فرقہ نہیں جماعت نہیں بنی تھی، بریلوی صرف ہم شہر کی طرف نسبت کرتے ہیں، ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر ہوگی، ٹھیک ہے، جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کرے گا، اہل سنت والجماعت۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی ان کے بزرگوں کی مسلط مزاریں یہاں پر ہیں، اور ہندوستان کی حکومت جو اہل ہے، سنت والجماعت نام ہے ایسے اہل سنت والجماعت ہاں کے، اہل انہوں سنت نے ایسا والجماعت، کہا، ہاں، نام لے کے کہا ایسے ہے جو وہ میرے اور میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کرے گا، عمل کرے گا تو صحیح ہے، اہل سنت والجماعت ہی اس کو نام دیا گیا ہے۔ تو وہ تو بعد میں دیا گیا ہوگا، شروع سے اہل سنت والجماعت ہے۔ نہیں نبی الاسلام میں تھوڑی دیا یہ نام، ارے بھیا، جو میرے صحابہ کی، اہل کس کو کہتے ہیں؟ نہیں میری بات سنو، نبی الاسلام نے دیا یہ نام یا نہیں؟ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی آیا ہے اہل سنت والجماعت۔ نبی الاسلام نے خود دیا تھا یہ نام، پکا؟ ارے بھیا، اس پہ پورا اجماع ہے، پوری مسلک کا اجماع ہے، تمام محدث کا اجماع ہے، تمام صحابہ جن کے پاس یہ حدیث موجود، سب کا اجماع ہے، اس پہ کیوں بحث کر رہے ہو؟ اب سنو آگے، اجماع ہے، کہ میں کیا بولا تھا تو تم نے بھلا دیا۔ ہاں، جب انہوں نے قدم رکھا نا ہندوستان میں، تو ان کو وہابی کہا جاتا تھا، یہ ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے تھے، تو ان کو وہابی کہا جاتا تھا۔ ابن وہاب کون تھے؟ ابن وہاب تو بہت بڑے تابعی تھے، ان کا بیٹا نالائق نکلا ابن عبد الوہاب نجدی، جس نے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے مکے پہ حملہ کیا، اور مکے میں جب ترکی کی حکومت تھی تو ترکی کی حکومت سے جنگ کی، اور ترکی کی حکومت نے سلطنت ان کو دے دی، کیونکہ وہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے مکے میں۔ تو اور ان کا نام دیا جاتا ہے ان سب کو؟ ہاں سنو، وہ کانٹریکٹ ہوا تھا 100 سال کا، وہ 100 سال کا کانٹریکٹ ہوا تھا، وہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے، ترکی دوبارہ آئے گی عرب میں۔ تو وہ یہ بتاؤ اہل حدیثوں کو ملتا کیا ہے ان چیزوں سے، بتانا۔ اب میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، اگر وہ غلط پھیلاتے ہیں تو بالکل میں بتا رہا ہوں ملتا کیا ہے۔ اہل حدیثوں نے جب یہاں پہ دیکھا نا ہندوستان میں کہ بھائی ان کے بڑے بڑے بزرگوں کی مزار ہیں، تو اسی سے یہ پہچانے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے بزرگوں کی مزار بنائی، صدیق حسن بھوپالی کی بھوپال میں بنائی، پکی عمارت بنی ہوئی ہے سنگ مرمر کی، گوگل پہ سرچ مار لینا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے بنائی شاہ اسماعیل دہلوی کی پکی قبر سنگ مرمر کی، گوگل پہ سرچ مار لینا آ جائے گی۔ ابن تیمیہ کی بنائی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے تکبیلی جماعت دیوبند سے دوستی کی، ٹھیک ہے، تبلیغی جماعت سے، ہاں دوستی کی، دیوبند سے دوستی کی، دیوبند کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے نہ ان کا ساتھ دیا نہ ان کا ساتھ دیا، اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ شریعت کا ساتھ دیا، اور انہوں نے جو کفر اپنی کتابوں میں لکھا حضور کی شان میں، اللہ کی شان میں، اس کا رد انہوں نے ہمیشہ کیا۔ اور دیوبندیوں کی 4 کتاب حفظ الایمان، فتاوی رشیدیہ اور تحذیر الناس، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے ان کو پہلے سمجھایا، اس طریقے سے دین کو برباد نہ کریں، حضور کی شان میں گستاخی نہ کریں، 12 سال سمجھایا آپ نے، یہ نہیں سمجھے، تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی اب جو ہے جماعت کا سلسلہ چالو کیا جائے، گھر گھر جا کے لوگوں کو سمجھایا جائے، تو الیاس کندھالوی نے اس کو شروع کیا جماعت کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب عرب میں حکومت پائی تو انہوں نے تمام جنت البقیہ کی مزارات کو توڑ دیے۔ آپ گوگل پہ جا کے سرچ مارنا کہ جنت البقیہ اولڈ پک، اولڈ پرانی، آپ دیکھنا کتنی اچھی اچھی مزاریں وہاں بنی ہوئی تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی مزار دیکھنا کتنی خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے حضور کی مزار کو توڑنے کا بھی فتویٰ جاری کیا۔
اس میں دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم تھے جو نیک تھے، وہ عرب جا کر کے انہوں نے ان سے بات کی کہ بھائی تم اتنی مزاروں کو مسمات کر رہے ہو، مزاریں توڑ رہے ہو، یہ غلط ہے۔ انہوں نے وہاں ایک پوری کتاب پیش کی تو ان سے وعدہ لیا گیا کہ بھائی اب ہم نہیں توڑیں گے، لیکن پھر بھی توڑ دیا گیا۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں فتوے میں پورا رسالہ لکھا ہے کہ عرب کے لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور میری بات کو ہاں کہہ کے نہ کیا۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے مل کے دونوں نے مل کے اپنی تبلیغ کرنی شروع کر دی ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، پورے ورلڈ میں۔ اب جب احمد رضا خان فاضلے بریلوی نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ خرافات پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کا ہر طریقے سے رد کیا اور اہل سنت والجماعت کو بچا کے رکھا ان سے۔ اس کے بعد جب انہوں نے مزارات کو توڑی تو احمد رضا خان فاضلے بریلوی نے ان سے مدد مانگی کہ مدد کرو، یہ بہت غلط ہو رہا ہے، تو انہوں نے مدد نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 دن پہلے تکمیلی جماعت کو عرب سے بین کیا گیا ہے، سنا ہے نا؟ اچھا، وہاں کی پوری ویب سائٹ اڑا دی انہوں نے، ان کی جماعت کو وہاں سے نکال دیا اور ان کی جتنی کتابیں تھی سب بین کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیثوں نے یہ دیکھا کہ اب ہماری جماعت بڑھ گئی ہے، تعداد زیادہ ہو گئی ہے، تو اب ہمیں تکمیلی جماعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو باہر کرو۔ ٹھیک، اور انہوں نے جتنی بھی دیوبند میں آپ دیکھو گے، دیوبندیوں کی جتنے بڑے بڑے مدرسے اور بڑی بڑی مسجدیں ہیں نا، وہ سب ریال کے دم پہ بنی ہوئی ہے، سعودیہ کے ریال کے دم پہ۔ تو یہ ایمان کو لوٹنے والے لٹیرے ہیں، ان کو صرف اپنی جماعت کو بڑھانا ہے، حدیث کو توڑ کے مروڑ کے، قرآن کی آیت کو توڑ کے مروڑ کے، کسی نہ کسی طریقے سے جاہل کو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک بندہ جب تک صحیح رہتا ہے، بریلویت پہ رہتا ہے، اس کا خاندان بریلویت پہ رہتا ہے، وہ بندہ کبھی کتاب نہیں پڑھتا، وہ بندہ کبھی مسجد نہیں جاتا، لیکن جہاں 4-5 دن ان کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، وہ حدیث پڑھنے لگتا ہے، وہ خود سے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے لگتا ہے اور خود سے اس کو سمجھنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جتنے عالم ہیں نا، ان کے عالموں کا ایک بھی عالم ایسا نہیں ہے جو ہمارے عالموں کے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کر لے۔ ایک طالب الرحمان نے ہمت بھی کی تھی، تو پاکستان میں مناظرہ ہوا تھا، اس میں 8 گھنٹے کا مناظرہ تھا، اس میں اس کی وہ حالت خراب ہوئی کہ اس کے بعد دوبارہ یہ مناظرے کے لیے نہیں بیٹھے۔ اب ان کی تقریریں تم سنو گے تو 4x4 کے کمرے میں بھونک کے چلے جاتے ہیں۔ میں بھائی صاحب کم سے کم 40 بار کال جرجس کو کر چکا ہوں، بات نہیں کرتا۔ کس کو؟ جرجس مولانا کو۔ اچھا، جرجس کو۔ ہاں، کیونکہ اس نے ایک تقریر کی تھی، ایک تقریر میں اس نے جھوٹ بولا تھا کہ سیرت غوث اعظم کتاب ہے، حاجی علی پہ ملتی ہے، اس میں ایک عبارت لکھی ہے کہ دستگیر نام غوث اعظم کا کیسے پڑا کہ اللہ کے ساتھ چوتھے آسمان پہ ٹہل رہے تھے، معاذ اللہ، اور خدا کا ہاتھ، خدا کا پیر پھسلا۔ ٹھیک ہے، تو اس جھوٹ کے سہارے اس نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب جب ہم اس سے کتاب مانگتے ہیں، یہ دلیل مانگتے ہیں، یہ حوالہ مانگتے ہیں، دیتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اس جھوٹ کے سارے کتنے بیچارے نوجوان بہک گئے کہ بھائی ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں۔ ابے جو عبارت ہو بہو لکھی ہے اس کو توڑ مروڑ کے یہ پیش کرتے ہیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت کی کتاب کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو بدنام کرو، ان کے بزرگوں کو بدنام کرو، ان کے بزرگوں کے بارے میں یہ پھیلا دو، وہ مدد نہیں کر سکتے، وہ دے نہیں سکتے۔ ایک جاہل کا فون آیا میرے پاس، سنو۔ ٹھیک ہے، مجھے اتنی زور سے، بہت ہو گیا، پھر کوئی بات کریں، نیند بھی آ رہی ہے۔ بس 5 منٹ دے دیتا ہوں۔ ایک جاہل کا فون آیا میرے پاس، میرے سے کہتا ہے کہ بھائی ایک پیپر میں نا اشتہار چھپا ہے۔ میں بولا کیا چھپا ہے بیٹا؟ کہہ رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز جو کے درگاہ پہ ایک بچہ کھو گیا، وہ ملا نہیں، پولیس میں کمپلین کی گئی تو پولیس بھی نہیں ڈھونڈ پائی۔ تو میں نے بولا تو پھر کیا ہوا بیٹا؟ کہہ رہا تو تم تو کہتے ہو خواجہ غریب نواز مدد کرتے ہو، تو بچہ کیسے کھو گیا، مدد کیوں نہیں کی؟ تو میں نے کہا ابے جاہل کی اولاد، یہ بتا مجھ کو کہ اگر کوئی غیر مسلم تجھ سے یہ پوچھے کہ بھائی جو حج کے دوران ابھی کران گری ہے، 40 حاجی شہید ہوئے ہیں، ہے نا، تو اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ وہ مکے میں کیسے مر گئے؟ اللہ بھی مددگار نہیں ہے؟ پھر کیا جواب دے گا اس کا؟
तो खामोश है। मैं बेवकूफ आदमी कम से कम बोलने से पहले सोचा कर क्या बोल रहा है, ठीक है। अबे अगर अल्लाह ने मदद नहीं की उन हाजियों की और उनको मरने दिया, किरान उनके ऊपर गिरने दी, तो कोई गैर मुस्लिम तुझसे हंसी मजाक करेगा तो उसका क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा तू? अबे बेवकूफ गधे, अल्लाह तबारक व ताला ने जो निज़ाम बनाया है अल्लाह के वली से या अल्लाह के नबी से या अल्लाह खुद, अब तू अल्लाह से दुआ मांग, क्या तेरी फौरन कबूल हो जाएगी? है तेरे पास कोई दलील? है तेरे पास कोई दलील? काफी टाइम लग जाता है और हाँ। नाज़िल होती है। तो अल्लाह तबारक व ताला को कब किसकी चीज़ कैसे पसंद आ जाए, कब आ जाए, और अल्लाह के वली के लिए हुजूर ने हदीस पेश की है बुखारी में, क्या कि जब तुम देखो जिसके बाल गुबार हैं, जिसके कपड़े फटे हुए हैं और वो मस्ती में हो, ठीक है, और अगर वो खुदा की कसम खा ले और कुछ मांग ले तो अल्लाह उसको देता है। क्या करोगे इस हदीस का? और जब तुमको कुरान में ये कह दिया कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, कट जाए, उसको तुम मुर्दा गुमान भी मत करो, वहां फुल स्टॉप है, मुर्दा गुमान भी मत करो। अब शहीद की कैटेगरी पता है कितनी है? पहला शहीद वो है जो अल्लाह की राह में जिहाद करता हुआ मर जाए, दुनिया से चला जाए। दूसरा शहीद वो कहलाता है जो पानी में डूब के ईमान वाला मर जाए। तीसरा शहीद वो कहलाता है जो पेड़ से गिर के। चौथा शहीद वो कहलाता है जो हामिला औरत है, मोमिन है, ईमान वाली है, और वो बच्चा पैदा करने टाइम दुनिया से चली जाए। और पांचवा शहीद वो है जो अल्लाह का जिक्र और अज़कार करते हुए दुनिया से चला जाए। तो क्या अल्लाह के नबी और अल्लाह के माज़अल्लाह अल्लाह के जितने वली हैं वो क्या अल्लाह का जिक्र और अज़कार करते हुए नहीं गए दुनिया से? है और भी कैटेगरी है शहीद की। मिसाल के तौर पे जैसे कोई तकरीर कर रहा है, नेक बंदा ईमान वाला, और कुरान पढ़ रहा है बैठ के आवाम के सामने। स्टॉप लगाया हुआ है क्या? जो कैसे जिंदा है वैसे तुम गुमान नहीं रख सकते, ठीक है। तुम वो अलग अगली आयत है, लेकिन यहाँ क्या फरमाया? तुम उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, वो जिंदा हैं। तुम्हें इसका शऊर नहीं है, तुम्हें शऊर नहीं है। जैसे मिसाल, मुर्दा कौन कहता है? हाँ तो भैया कह तो रहे, अल्लाह के वली को मुर्दा कह रहे हैं लोग। कहाँ मुर्दा थोड़ी कहते हैं। तो और क्या कह रहे हैं ये अहले हदीस? क्या कह रहे हैं ये? तकरीरें सुनो उनकी। आप सुनिए मेरी बात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह चाहता, सुनो, जो ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह चाहे ना, अल्लाह चाहता, और तो ये कब्र के अंदर जो अजाब होते हैं ना, अल्लाह हर किसी को सुना दे, लेकिन फिर इंसान इंसान नहीं रहेगा, उसको किसी चीज में दिल नहीं रहेगा, वो रोता रहेगा, तड़पता रहेगा, पटकता रहेगा सर कि अल्लाह मुझे बख्श, अल्लाह मुझे बख्श, अल्लाह मुझे बख्श। ना वो खाएगा ना पिएगा, कुछ नहीं करेगा, बस रोता रहेगा, तड़पता रहेगा। और अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया, वो कब्र के अजाब को सुनते थे। वो तो सुन लेते हैं। ठीक, तो अल्लाह ने उनको दी ये चीज की कुव्वत उनको दी, ये ताकत उनको दी, ये हर चीज उनको अता की, हमें कुछ नहीं किया। अब इसी तरीके से जब वो चीज हमें शऊर में नहीं है तो ये चीज भी हमें शऊर में नहीं है कि वो जिंदा है कब्र के अंदर, हमें शऊर ही नहीं है। हुजूर की हदीस है, जब मुर्दे को दफन किया जाता है और जब इंसान 40 कदम दूर जाता है ना, तो मुर्दा उनके कदमों की आहट को सुनता है, और फिर फरिश्ते आके उसको उठाते हैं, फिर इससे सवाल जवाब होता है। हमें इसका शऊर नहीं है, हमें इसका शऊर नहीं है, लेकिन ये होता है, हमें शऊर नहीं है, ये होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ बैठे हैं, अमेरिका हमसे कोसों दूर है, वहाँ पे भी इंसान है, वहाँ पे भी खाते हैं, वहाँ पे भी पीते हैं, वहाँ पे भी सोते हैं, हमें इसका शऊर ही नहीं है, लेकिन है इंसान वहाँ पे, जिंदा है, मुर्दा भी है, मरते भी हैं, हमें शऊर नहीं है, हमें दी नहीं अल्लाह ने वो। लेकिन अल्लाह जिसे चाहे, जैसे साहबी को दी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं जुम्मे का, और सारिया जो है कई हजार किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, और खुतबा देने के दौरान हजरत उमर कहते हैं सारिया पहाड़ के उस तरफ हो जा, तो सारे सहाबा कहते हैं ये क्या हुआ हजरत उमर को खुतबा देते के दौरान में सारिया पहाड़ के उस तरफ हो जा। तो जब हजरत सारिया जब आते हैं वापस जंग पे से, कहते हैं कि अगर हजरत उमर की वो आवाज मेरे कानों तक ना पहुंचती तो दुश्मन हम पे हावी हो गया था। तो अल्लाह जब चाहे जिसे जो सुना दे।
अब बताइए कि बिना टेलीफोन के, बिना किसी चीज के, कई हजार किलोमीटर दूर से हजरत उमर की आवाज को सुन लिया सारिया ने। अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, अल्लाह सुना रहा है ना, हमें खुद तो इख्तियार है नहीं। तो अल्लाह ने हमें उसका शऊर नहीं दिया कि वो जिंदा है, हमें उसका शऊर नहीं है वो कैसे जिंदा है, लेकिन हम उसको मुर्दा गुमान नहीं कर सकते और ना कह सकते हैं। तो कुरान में जितनी भी आयतें मिन दूनिल्लाह आई है ना, बुतों के ताल्लुक से आई है, मज़ारों के ताल्लुक से नहीं आई है। इसको मज़ारों पे मत चस्पाना कभी भी, नहीं तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की जो हदीस है ना, वो तुम पे फिट हो जाएगी कि वो खारजी बदतरीन मखलूक हैं जो कुरान में काफिरों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को मुसलमानों पे चस्पाते हैं। वो हदीस भेज दूंगा तुम्हें, बुखारी की है, मेरे पास किताब रखी है। तो हदीस को और कुरान को, ध्यान रखना मेरी बात को, हदीस को और कुरान को कभी खुद से समझने की कोशिश मत करना, ठीक है? अगर तुम्हें उसका इल्म है, अगर तुम समझने की कुव्वत कर सकते हो, रख सकते हो, तो तुम फकी कहलाओगे, तुम मुहद्दिस कहलाओगे, तुम आलिम कहलाओगे। लेकिन तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि आयत क्या बोल रही है, कब नाजिल हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, वजह क्या थी, तुम्हें पता ही नहीं है, फिर भी उसके पीछे पड़े हो, बेकार की बहस करते हो कि वो मदद नहीं कर सकते, हम उनसे वसीला नहीं ले सकते। किसका अकीदा है ये? किस साहबी का अकीदा है बताओ? किस साहबी ने कहा कि हुजूर दुनिया से चले गए, हम उनसे दुआ नहीं कर सकते? है कोई हदीस? अच्छा एक बात बताओ, ये पते की बात है, सुन लो फिर रख देना फोन। ये बताओ कि अल्लाह ने फरमाया सूरह तहरीम में कि ईमान वाले मोमिन तुम्हारे मददगार हैं, ठीक है? काफिर के बारे में फरमाया कि काफिर मददगार है या नहीं? नहीं। नहीं ना। तो काफिर से जिंदा में मदद लेते हो? मुझे तो खैर जरूरत पड़ी नहीं है अभी तो। अरे यार हॉस्पिटल जाते हो, पैसे लेते हैं वो पैसे लेते हैं लेकिन तुम्हारी मदद करते हैं ना। मदद तो वो होती है जो फ्री में हो। चलो सरकारी हॉस्पिटल में पैसे लेते हैं? वो सरकारी योजनाएं हैं सारी। हाँ तो सरकार किसकी है? जनता की होती है। सरकार तो काफिर ही की है ना हिंदुस्तान में भाई, हर भी मुल्क तो है ये है। हाँ लेकिन उस हाँ मदद तो को अब मुझे, लौटाते हैं और हाँ तो टैक्स तो लेते हैं ना। तो मेरे भाई टैक्स में सिर्फ मुसलमान का पैसा थोड़ी जा रहा है, टैक्स में तो सबका पैसा जा रहा है, मिली जुली सरकार है। और ये हर भी मुल्क है, हर भी का हाँ मतलब तो होता है जो गैर हमसे टैक्स मुस्लिम का। लेते हैं वो लौटा देते हैं हमें, तो चलो कौन सा हम पे एहसान कर रहे हैं। चलो अब मुझे बताओ कि रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और कोई काफिर गाड़ी लेके आ रहा हो और तुम्हें पहुंचा दे हॉस्पिटल, तुम्हारी मदद कर दे, या तुम मुझसे मांग लो भाई मैं अकेला हूँ और मेरी मदद कर दो, मुझे पहुंचा दो, वो पहुंचा दे। तो कुरान में कहीं अल्लाह ने फरमाया है ईमान वालों काफिरों से मदद ले लो, या हदीस में आया हुजूर ने फरमाया हो ए मेरे साहबा काफिरों से मदद ले लो? नहीं आया, फिर भी ले रहे हो। इसको शिर्क क्यों नहीं कहते? कि हुजूर ने तो कभी नहीं बोला, अल्लाह ने तो कभी नहीं बोला। जो चीज हमें दिख नहीं रही है उससे अगर हम मदद मांगते हैं तो शिरक में ही आ दिख जाएगी। तो अल्लाह भी जहाँ नहीं तक रहा है। तुम्हें, दिख तो फरिश्ते तो भी नहीं उसको रहे। तो उसको तो पुकारना, खुद क्यों कहा उसको पुकारोगे? पुकारो। तो किसने बोला पुकारने के लिए? नबी इस्लाम ने कहा। नबी अलैहिस्सलाम को देखा तुमने? यही तो ईमान है। तो ईमान इसी का नाम है कि अल्लाह ने जो निजाम बनाया है उस निजाम पे रहो। जो निजाम 200 साल से वहाबी देवबंदी ने बनाया है उसको लात मारो। यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? तो तुम्हें जो मिठाई का जो मैंने तुम्हें वो बताया ना मिसाल, मिठाई वाली मिसाल, कि हिंदुस्तान में अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने दीन की तबलीग की, हदीस की, तो जो उन्होंने हमें बताया हम वो करेंगे, हम तुम्हें नहीं जानते। और अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो आलिम नहीं बन सकता आज की तारीख में जो उनको ना जानता हो, जो उनकी किताबें ना पढ़े। समझ गए? उनका नाम अब्दुल हक मुहद्दिस ऐसे ही नहीं पड़ा। कितने साल पहले आए थे? करीबन आए थे 7 या 8 हिजरी में आए थे। वो तहकीक करके बता दूंगा, मुझे मुकम्मल नहीं मालूम है, लेकिन मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ कि दीन की जो तबलीग है जो हिंदुस्तान में हदीस की उन्होंने की है। और उनकी मज़ार कहाँ है मालूम है? उनकी मज़ार है महरौली शरीफ, दिल्ली में, मेरे घर के 2 किलोमीटर दूर। उनकी लाइब्रेरी भी है उसमें किताबों की।
ठीक है। और वो पूरा एरिया ना औलिया का गढ़ बताया जाता है, वहाँ पे ख्वाजा कुतुबुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। ये रिकॉर्डिंग जैसा मैंने काट दिया यहाँ से, ये 2.5-3 घंटे की रिकॉर्डिंग है, बहुत लंबी है और इस भाई को काफ़ी मेहनत लगी समझाने में और रोमन में और हिंदी में इसको तहरीर बना के डाली है ताकि ये उसको पढ़े, हवालों को पढ़े, हदीस को पढ़े, समझे। क्योंकि माँ बाप की गलती होती है कि बच्चों को तालीम नहीं देते और इसी तरीके से आज वहाबी देवबंदी इनको बहका देते हैं और अपनी तरफ कैप्चर कर लेते हैं। तो आप तमामी हजरात इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुँचाइए और ऐसे बच्चों तक पहुँचाइए जो इस तरीके की सोच रखते हैं, जो अरबी उर्दू से दूर हैं, जो दीनी तालीम से दूर हैं, उन तक इस रिकॉर्डिंग को पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।